एक्टिविटी करती हूँ, जब भी स्टार्ट करती हूँ, तब वो मेरे बेबी भी साथ में रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत अच्छा फीलिंग आता है और मन भी इतना शांत हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो भी प्लानिंग कर रहा है, कि जो भी जिसको भी कंसीव हो चुका है, वो ये ऐप का यूज़ ज़रूर करे और अपनी बेबी की हेल्थ और आपको जैसा बेबी चाहिए उस हिसाब से आप उसको बना सकते हो। थैंक यू सो मच मैजेस्टिक गर्भ संस्कार, हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतना नॉलेज देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Hi, my name is Anita Chaurasia from New Mumbai. It was wonderful and amazing experience with Majestic Garbha Sanskar. There was lot of new things to get learned from this. Previously, I only knowing about Vedic Garbha Sanskar, reading spiritual books and stories. That's it. I don't know. I totally don't know about this Garbha Samvad, which is very powerful practice to connect baby and mother by emotions. All the members of Majestic Garbha Sanskar team doing a very great job to deliver sanskar in Garbh, which is very important time for mother to teach baby in womb. They also teach different activities for baby's brain development and different more ideas puzzles and question answer, logical question answer and mathematics, uh, and which is actually joyful for mother and baby too. By this workshop, I equated totally different view of pregnancy, which is very positive from the negative thoughts and fears. I fully enjoyed this majestic Garbha Sanskar workshop. Thank you so much, Majestic Garbha Sanskar and all team members. નમસ્કાર, હેપી ગર્ભ સંસ્કાર ટુ ઓલ. મેજેસ્ટિક ગર્ભ સંસ્કાર દ્વારા જે વેબિનાર ચલાવવામાં આવે છે એના દ્વારા અમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. અને આ ઉપરાંત આ જે સેમિનાર હોય છે, વેબિનાર હોય છે, એના દ્વારા લોકોમાં, બાળકોમાં સંસ્કારનું સિંચન કેવી રીતે કરવું, મગજનો 80% વિકાસ ગર્ભમાં જ થાય છે એના વિશે ડિટેલમાં સમજ, મગજના જમણા ભાગને અને ડાબા ભાગનો વિકાસ કઈ રીતે થાય છે, એના માટે કઈ એક્ટિવિટીઓ કરી શકાય એના માટેની ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક સમજ આપવામાં આવી છે. અને આ જે 6 ડેઝના વર્કશોપ દરમિયાન જે કંઈ શીખવા મળશે એના દ્વારા આવનારા બાળકમાં ખૂબ જ સારો એવો ડેવલપમેન્ટ થશે અને ખૂબ જ યુઝફુલ એપ છે આ. અને એપ બી બહુ સરસ છે. એપમાં બી શીખવા માટેનું ઘણું બધું કન્ટેન્ટ આપેલું છે અને સેમિનાર દ્વારા બી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે અમને. થેન્ક યુ. Happy Garbh Sanskar. Myself Dr. Hiral Jani from Ahmedabad. I was introduced regarding this application called Majestic Garbh Sanskar through one of my friend. Even though many Garbh Sanskar online and offline courses are available, but I found this particular Majestic Garbh Sanskar is very impactful, meaningful, very easy to understand, and important is it is not boring. सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो लोग जो गर्भ संवाद कराना सिखाते हैं वो इतनी अच्छी तरह से और सरलता से वो लोग हमें सिखाते हैं, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस मॉम टू बी एंड अवर चाइल्ड. So yes, I indeed thankful to all the professors who are delivering the speech in the way so that anybody can easily understand and grab the concept of Garbh Sanskar. I found really myself very refreshing, fun loving, and happy after attending the 5 day session of Garbh Sanskar. So, yes, I heartily thank you once again to all Majestic Garbh Sanskar team who bring this wonderful concept for mom to be. I highly recommend the Majestic Garbh Sanskar course and its application called Majestic Garbh Sanskar Guru, which is available on Google Play Store. Thank you. Happy Garbh Sanskar. Stay home, stay safe.
Hi, I'm Gauri Sharma. I'm using Majestic Garbha Sanskar app since from the first month of the pregnancy, and it's an amazing app I ever seen. I downloaded so much apps, but it included all the informations regarding to the pregnancy, and in a very easy way. Definitely, it's a very useful for the pregnant women as well as the planners, and. This app is available in the 3 languages, that is the हिंदी, इंग्लिश एंड द गुजराती. सो आपको जो भी लैंग्वेज में आपकी मदर टंग हो उसमें आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो. वहाँ पे बहुत इजी वे में और इफ़ेक्टिव वे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. So must download this app. In this app, we knows more information about the growth of the baby and which activities we have to do to develop the some interest. If you want to do, if you like कि आपका बच्चा स्पोर्ट में जाए या आर्ट क्राफ्ट में इंटरेस्ट रहे या पढ़ाई में इंटरेस्ट रहे, तो हाउ टू डेवलप देयर ब्रेन इन द वॉर्म, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई है. एज वेल एट इट इंक्लूडेड द म्यूजिक्स, rags. That's why this app is the most important app for the pregnancy, I think so. So must download. Congratulations. गुड मॉर्निंग माँ. अरे अब तक सोई हुई हो? मतलब आज भी योगा क्लासेस नहीं गई होगी. माँ थक जाती हूँ. पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है. पर प्रेगनेंसी के दौरान ये सब करना जरूरी होता है. क्या करूँ, नहीं हो पाता है मुझसे. तुम जरा अपना फोन देखो. गर्भ संस्कार गुरु. नहीं, मैं ऑलरेडी 3 वर्कशॉप कर रही हूँ. अब और ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी. ये ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, एकदम परफेक्ट है. तेरी सारी वर्कशॉप और योगा ट्रेनर यही एप्लीकेशन बनेगी. दिन की 12 एक्टिविटीज है इसमें, जो तू अपने हिसाब से कहीं से भी कर सकती है. तू सिर्फ इस एप्लीकेशन को फॉलो कर, देखना आने वाला बच्चा एकदम स्मार्ट होगा. बिल्कुल अपनी नानी की तरह. जॉयफुल और पॉजिटिव प्रेगनेंसी के लिए आज ही ज्वाइन करें गर्भ संस्कार गुरु. तुम्हें क्या लगता है हमारा बच्चा कैसा होगा? बस यही बात मैं हर रोज सोचता हूँ और हर रोज नए नए ख्याल आते हैं. आहा, क्या ख्याल आते हैं बताओ ना. तो सुनो, अब मेरी तरह शांत होना चाहिए ऑब्वियसली, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें होनी चाहिए, रीडिंग करने का शौक होना चाहिए और हर स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, साइंस सब में अव्वल होना चाहिए. और हम ना उसे एक बड़ी सी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे और मैं तो उसे फॉरेन भेजने के लिए भी रेडी हूँ. बस करो, हर रोज आपके ख्याल बदलते हैं, हर रोज बातें बदलती हैं. सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा. काश आपका बच्चा आपको ये बता पाता. प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिविटीज भी जरूरी है. सब्सक्राइब करें गर्भ संस्कार गुरु, वर्ल्ड्स ओनली पर्सनलाइज्ड पॉजिटिव प्रेगनेंसी कोर्स. दादी तुम दोनों से नाराज है. पर क्यों? तुम दोनों दादी को अपने साथ जो
नहीं ले जा रहे हो? दादी, क्या ये सच है? दादी जी, हम आपको साथ ले जाने के लिए ही आए थे, पर डॉक्टर ने आपको ट्रैवल करने से मना किया है इसलिए। और वैसे भी मैं हूँ तो सही वहाँ, उसका ख्याल रखने के लिए। मेरे माटी के माधव, तू मेरी बहू का ख्याल रखेगा? हाँ? तुझे पता भी है कि इस समय इसको क्या करना है क्या नहीं करना, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ आ रही हूँ। ला, तेरा मोबाइल दे। ये देख, गर्भ संस्कार गुरु। हाँ, गर्भ संस्कार गुरु। ये तुम्हें सब कुछ बताएगा कि इन दिनों में क्या खाना है, क्या परहेज करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये सब इस एप्लीकेशन से पता चलेगा। वादा करो कि तुम इसकी सब बातें मानोगी, जैसे अपनी दादी की मानती हो। वादा। गर्भ संस्कार गुरु अपने ही समझते हैं अपनों की जरूरतों को। Hello everyone, happy Girl Sanskar to all of you. Right now I am in my 5th month of pregnancy, so I will suggest to all of you वेलकम ऑल। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार और स्टेम साइट इंडिया द्वारा आयोजित इस 3 दिन के गर्भ संस्कार वी आर प्रेग्नेंट वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। डे 3 और आज के दिन हम डाइट, योगा और बाकी सारी 12 एक्टिविटीज के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। होप कि आप सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियरली आ रहा है, स्क्रीन भी दिख रही है कंप्लीट। यस, जो फ्रेंड्स हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी क्विकली अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ताकि आज भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, तो आप अच्छी तरीके से उसे समझ सकें। आपके द्वारा हमें जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस मिले थे उनके बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यस रोशनी जी, हैप्पी गर्भ संस्कार, सभी को हैप्पी गर्भ संस्कार। तो सबसे पहले हर दिन की तरह आज हम एक एक्टिविटी के साथ, एक गेम के साथ शुरुआत करेंगे, और गेम है कुछ इस प्रकार, आपको बोलना है माँ। अब इतना आसान तो नहीं होगा ना गेम, तो गेम का एक रूल है छोटा सा, माँ बोलते समय आपके दोनों होठ एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। दोनों होठों को टच किए बिना हमें माँ बोलना है। यस चैताली जी, अंजना जी, याति जी, अभय जी, सभी कोशिश कर देखेंगे एक बार कैसा अनुभव हो रहा है। क्या माँ बोलते समय आपके होठ टच नहीं करने हैं? आप ऐसा कर पा रहे हैं? यस, यति जी मना कर रहे हैं, सृजल जी भी कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। यस, वेरी गुड। क्या लगता है अंजना जी, चैताली जी, टीना जी, काजल जी, आप सभी का क्या रिस्पॉन्स है? इज इट पॉसिबल? यस वृशाली जी, नो, नॉट एबल टू डू, राइट। हम एक छोटा सा काम मैंने आपको दिया, माँ बोलना है, और वो भी नहीं हो पाया। टेक्निकली इट्स वेरी क्लियर, हमारी भाषा बहुत साइंटिफिक वे में डिजाइन की गई है, राइट। और म शब्द प्रोनाउंस करने के लिए हमें कंपलसरी दोनों होठों को टच करना पड़ता है। हमें नहीं पता था ना आज से पहले, पर फिर भी हम होठों को टच कर म बोलते थे, म से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स यूज करते थे। ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार का भी ऐसा ही है। दुनिया के हर माता पिता जिन्होंने किसी महान संतान को जन्म दिया है, उन्होंने भी जाने अनजाने गर्भ संस्कार को फॉलो कर लिया है, बट उन्हें शायद पता नहीं था। बट स्टिल ये तो सिद्धांत है ना, इसने अपना काम कर दिया। तो जब आप और हम साथ में मिलकर गर्भ संस्कार को अच्छी तरीके से जानकर फॉलो करेंगे, तो कितनी पावरफुल इंपैक्ट आ सकती है। इसी बात को आज थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो गर्भ संस्कार की अहमियत किस हद तक है हमारी लाइफ में? तो जैसे खाना खाना महत्वपूर्ण है,
वैसा ही जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार का पालन करना। क्या मैं आपको यूं कहूं कि सप्ताह में एक बार खाना खा लो तो चलेगा? चलो सप्ताह में एक बार थोड़ा हैवी हो जाएगा, एक दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाना है तो चलेगा? तो भी नहीं चलेगा, राइट? हमें दिन में 3 से 4 बार खाना खाना पड़ता है अलग अलग डोज में। कभी हम नाश्ते की तरह लेते हैं, कभी हम कुछ मिल्क या जूस की तरह लेते हैं, कभी डिनर या लंच की तरह लेते हैं, पर हमें 3 से 4 बार फूड इंटेक करना पड़ता है, तब जाकर हमारा शरीर नॉर्मल रह पाता है, राइट? तो उसी तरह गर्भ संस्कार के बारे में भी हमें यही समझना पड़ेगा। हम वीक में एक बार गर्भ संस्कार करेंगे या दिन में एक बार गर्भ संस्कार करेंगे तो फायदा होने वाला नहीं है। हमें प्रॉपर तरीके से अगर इसका बेनिफिट लेना है तो दिन में ये 12 एक्टिविटीज जिसका हम डे 1 से डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हें पूरे दिन के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में करता रहना पड़ेगा। तो काफी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं जो 2 दिन में, उन्होंने हमने प्रश्न पूछा कि सर हम क्या गर्भ संस्कार का कोई क्लास अटेंड कर लें तो चलेगा, या ये 3 दिन का वर्कशॉप भर लिया तो हो गया क्या गर्भ संस्कार हमारा, या हमने गर्भ संस्कार की कोई किताब पढ़ ली, या कभी कभी हम छुटमुट कोई वीडियो देख लेते हैं, इंटरनेट पर ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो क्या वो हम देख लेंगे तो गर्भ संस्कार हो गया? तो क्या लगता है क्या होगा सही आंसर? गर्भ संस्कार इन सारी चीजों से कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट गर्भ संस्कार मतलब रोजाना इन 12 प्रवृत्तियों का आपके द्वारा किया जाना। और कितना समय लगता है पता है आपको ये एक्टिविटीज करने में? हार्डली 30 to 40 मिनट्स। और पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारा दूसरा काम करते हुए साथ के साथ हम हमारे बच्चे के लिए 5-5 मिनट के ये 6-7 स्लॉट नहीं निकाल सकते? कोई भी माता निकाल सकती है, राइट? अभी इन 9 महीनों में बेबी से ज्यादा बेटर क्या हो सकता है? तो चलिए इन एक्टिविटीज को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि कल हमने स्टोरी एंड बायोग्राफी के बारे में समझा था, उसी तरह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी 3 अलग अलग एक्टिविटीज जरूरी है। एक है प्रार्थना। प्रेगनेंसी के दौरान हर रोज माता और पिता को साथ में मिलकर भगवान के सामने प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना के लिए काफी लोग हमें पूछते हैं कि सर कौन से भगवान की या कौन से माता जी की प्रार्थना करें तो फायदा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान बदलने से सॉल्यूशन नहीं आता। आप जिन्हें मानते हो ना, उससे और ज्यादा श्रद्धा से मानिए। तो आप जिन्हें मानते हो बस उन्हीं की प्रार्थना करनी है, उन्हीं का आह्वान करना है। और प्रार्थना में क्या कहना है? हे भगवान, हमें एक श्रेष्ठ गुणों वाले संतान को जन्म देने का निमित्त बनाइए और प्रेगनेंसी के दौरान माता की और बच्चे की रक्षा कीजिए, राइट? ये बहुत जरूरी है हमें प्रार्थना के समय मांगना। दूसरा टास्क है श्लोक, मंत्र, साखी कड़ी, छंद, दोहे, इन सब चीजों का प्रेगनेंसी के दौरान अभ्यास करिए। अब मैं श्लोक वगैरह पर क्यों इतना ज्यादा वेटेज दे रहा हूं? तो बहुत क्लियर सा मैसेज है कि संस्कृत भाषा ये दुनिया की सबसे साइंटिफिक भाषा है, सबसे पहली भाषा है। और इस भाषा का अगर थोड़ा सा भी नॉलेज बच्चे को गर्भ में मिलना शुरू हो जाता है तो बच्चे के प्रोनाउंसिएशन पावरफुल बनते हैं, बच्चे की समझ, उसका भाषा के प्रति लगाव पावरफुल बनता है, और वो अलग अलग भाषाएं बड़ी आसानी से सीख पाता है, क्योंकि संस्कृत सबसे बेसिक भाषा है, सबसे पहली भाषा है। इसी भाषा के आधार पर बाकी भाषाओं का धीरे धीरे जन्म हुआ। तो इसलिए ये सारे श्लोक सीखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कंठस्थ हो जाए। अब मैं इसमें अगर आपको यूं कहूं कि आपको संस्कृत के वेदों के मंत्र पढ़ने चाहिए जो गर्भ संस्कार के बारे में लिखे हुए हैं, तो क्या वो मंत्र सुनकर या वो पढ़ने से आपको कुछ फायदा होगा? पल्ले ही नहीं पड़ते, क्योंकि हमने तो संस्कृत को 10वीं कक्षा में ऑप्शन में निकाल दिया था ना कि भाई सब बाकी सब पढ़ लेंगे पर संस्कृत नहीं। तो जो भाषा हमें समझ नहीं आती उसके श्लोक पढ़कर क्या फायदा हो सकता है? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें वैदिक ऐसे मंत्रों को नहीं सुनना है और उनको सीखने की कोशिश करनी है, पर हमें हमारी रूटीन लाइफ में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन श्लोकों को समझना है। तो कौन से मंत्र है ऐसे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गायत्री मंत्र, ओम सहना भवतु,
सर्वेत्र सुखिनो संतु। तो ये जो सारे श्लोक हैं ये रूटीन लाइफ में हमें कुछ मैसेज भी देते हैं। अब गायत्री मंत्र अगर मैं बोलने का कहूं तो आप में से ज्यादातर लोग फटाफट बोल देंगे, पर मैं अगर ये कहूं कि क्या आपको उसका अर्थ पता है, तो ज्यादातर लोग मना करेंगे कि नहीं, अर्थ नहीं पता है। तो अर्थ समझना भी जरूरी है। तो अर्थ भी समझिए और उन मंत्रों को कंठस्थ करिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन में आपके द्वारा जन्म लेने वाले बच्चों को एटलीस्ट कुछ श्लोक तो समझ में आए अच्छी तरीके से, राइट। फिर तीसरा सेगमेंट आता है सत्संग और सोशल एक्टिविटीज, जिसके अंदर हमें भगवान का भजन करना, मंत्र जाप करना, श्रृंगार करना, मंदिर दर्शन करना, ऐसी अलग अलग धार्मिक प्रवृत्तियों में जुड़ना है। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज, किसी भूखे को खाना खिलाना, दान दक्षिणा देना, राइट, पक्षियों को दाना डालना, गाय भैंस वगैरह जो पशु पक्षियां हैं उनके लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करना, चारा डालना। तो ऐसी अलग अलग प्रवृत्तियां हमें प्रेगनेंसी के दौरान करनी है, जिसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर भी और होने वाले बच्चे पर भी पड़ती है। फिर आता है एक और महत्वपूर्ण टास्क, वीडियो वॉचिंग। अच्छी अच्छी पॉजिटिव वीडियोस देखना है। अब वीडियो वॉचिंग कहा इसलिए काफी लोग खुश हो गए होंगे कि हाँ मैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर रील्स देखना बिल्कुल नहीं चूकती, वो तो मैं पहले ही देख लेती हूँ, राइट। तो मैं उन वीडियोस की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी वीडियोस की बात कर रहा हूँ जहां से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, जैसे कि डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री चैनल हो गया, उपनिषद गंगा, रामायण, भागवत कथा, ऐसी सारी वीडियोस के जहां से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। इसके अलावा हम अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, अच्छे ऐसे कॉमेडी शोज देख सकते हैं जहां से हमें सात्विक कॉमेडी मिलती हो, राइट, जहां पर द्विअर्थी बातें हो रही हो, नेगेटिव बातें हो रही हो, ऐसी वीडियोस भी नहीं देखनी है हमें। अब ये सारी वीडियोस हम कहां पर देख सकते हैं? क्या यूट्यूब या फेसबुक सही जगह रहेगी? ईमानदारी से बताइएगा, अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो देखने जाते हो, तो वो वीडियो 2-3 मिनट से ज्यादा देख पाते हो? नहीं। बगल में ढेर सारे थंबनेल्स होते हैं जहां पर अट्रैक्टिव टाइटल्स दिखते हैं, राइट, और हमारा मन तुरंत ललचा जाता है और हम फालतू वीडियोस देखने बैठ जाते हैं। हम गए थे 5 मिनट का वीडियो देखने, पर पता चलता है कि 1 घंटे तक फालतू वीडियो देखते रहे, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो वो जगह सही नहीं है। तो हमें वीडियो के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां पर हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें जो देखना है वही दिखाया जाए, जो हमारे लिए सही है वही दिखाया जाए। तो ये भी समझने वाली बात है कि हमें सिलेक्टेड वीडियोस देखने हैं, फालतू वीडियोस देखने में समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, जो भी आप सोचते हो ना वो एज इट इज बेबी स्टोर कर लेता है। बेबी के पास कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है कि सही या गलत का चुनाव कर सके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी? मम्मी और पापा की। हमें समझदारी पूर्वक पॉजिटिव चीजें ही देखकर बच्चे तक पहुंचानी है। क्लियर? चलिए, अब आप सभी के मन में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहला विचार है योगा, प्राणायाम, डाइट, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब प्रेगनेंसी में कैसे करना होता है। तो सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के समय योग, प्राणायाम, वॉकिंग, ये सारी एक्टिविटी सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपने IUI, IVF, PCOD ऐसा कोई ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, या आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट करना जरूरी है, तो हमें कोई योग प्राणायाम नहीं करना है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई मेजर परेशानी नहीं है, तो आप डेफिनेटली योग का अभ्यास कर सकते हो। पर योग के लिए ज्यादातर माताएं क्या करती हैं कि यूट्यूब पर चली जाती हैं, बाबा रामदेव, शिल्पा शेट्टी, तरह तरह के वीडियोस अवेलेबल है, राइट, और हम उनमें से कोई भी वीडियो निकाल लेते हैं और योग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जनरल योगा और प्रेगनेंसी योगा दोनों में अंतर है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं। नॉर्मली हम जब योगा सीखते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? श्वास लीजिए, लंबे समय तक उसे होल्ड कर रखिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी में श्वास लीजिए
और उसे थोड़ी ही देर में छोड़ दीजिए। लंबा समय तक होल्ड कर कर नहीं रखना है, क्योंकि अगर होल्ड कर कर रखा तो वो बेबी को नुकसान दे सकता है। अब ये कितनी छोटी सी बात है, पर ये बात हमें प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट बता सकता है, जनरल योगा प्रैक्टिशनर ये बात नहीं बता सकता। तो हमें बिल्कुल केयरफुल रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में सारे योगा नहीं किए जा सकते और कुछ योग ट्राइमेस्टर वाइज करने होते हैं। तो इन सारी बातों को हमें अच्छी तरीके से समझना है। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का जो कोर्स हमने बनाया है, उसमें प्रेगनेंसी के डे वाइज पूरा योगा का प्लान हमने दे रखा है, और वो भी एक्सपर्ट्स की वीडियोस के साथ, ताकि आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से दिन में कभी भी योगा की प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ये सारी बातें हमें योग का अभ्यास करते समय हमेशा ध्यान रखनी है। नॉर्मली अगर बेड रेस्ट सजेस्ट किया हो तब भी आप डॉक्टर की सलाह लेकर प्राणायाम जरूर कर सकते हैं, पर बाकी और कोई एक्टिविटीज आपको नहीं करनी होती है, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट, डाइट। यस, डाइट को लेकर सभी ममाज बड़ी एक्साइटेड होती है ना। गूगल पर अगर पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान माताएं सबसे ज्यादा क्या सर्च करती हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं पपीता खाऊं या नहीं, बैंगन खाऊं या नहीं, ये खाऊं या नहीं, वो खाऊं या नहीं, कोई हमें डाइट प्लान बता दे तो बहुत फायदा हो जाएगा हमें और बच्चे के लिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। अरे भाई साहब, अभी तो बच्चा छोटा सा है, ऐसा नहीं होता कि 2 लोगों का खाना खाना होता है। हाँ, हेल्दी खाना खाना चाहिए, वो जरूरी बात है। तो चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान या रूटीन लाइफ में भी कोई डाइट प्लान बनवाते हो, तो डाइट प्लान कितने घंटे फॉलो करते हो? मैं जानबूझकर दिन में या महीनों में नहीं पूछ रहा हूं, कितने घंटे फॉलो करते हो वो पूछ रहा हूं, क्योंकि पता है नॉर्मली हम लोग फॉलो नहीं करते। हम सिर्फ मन की तसल्ली के लिए हजारों रुपए खर्च करके डाइट प्लान बनवा लाते हैं, पर 1 घंटे में ही हमें पानी पूरी याद आ जाती है, पाव भाजी याद आ जाता है, पिज्जा पास्ता याद आ जाता है और बैंड बज जाती है डाइट प्लान की। तो एक्चुअल में डाइट प्लान में क्या इंपॉर्टेंट है जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स खाना है, गाय का दूध लेना है, वगैरह वगैरह, राइट। तो क्या ड्राई फ्रूट खाने से ही तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है? अगर ये बात सही होती तो किसी भी गरीब परिवार में कभी कोई तंदुरुस्त बच्चा पैदा ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ड्राई फ्रूट तो क्या उसका फोटोग्राफ भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो उन पर फिर भी ज्यादातर केस में हम क्या देखते हैं पता है, जिस माता ने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारा ड्राई फ्रूट खाया, वो मुश्किल से 2.5 किलो के बच्चे को जन्म दे पाई। और वहां एक गरीब परिवार की माता जिसने मुश्किल से सिंगदाना खाया होगा, उसने 3.5 किलो के बच्चे को जन्म दिया। इसका मतलब क्वालिटी से ज्यादा कोई और चीज काम कर रही है, जिसके बारे में हमें कोई बताता ही नहीं है। क्या लगता है आपको, बात सही है? ऐसा होता है? तो क्या सीक्रेट है इसके पीछे का? इसके पीछे का सीक्रेट है आप कौन से विचार से खाना खाते हो। ज्यादातर माताएं क्या करती है, मैं ये एवोकाडो का जूस पी तो लूं, पर ये पीकर मुझे उल्टी तो नहीं हो जाएगी, ये खाकर मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, ये कर मुझे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो जाएगा। अब हम खाना खाने से पहले ही उसे नेगेटिव विचार दे देते हैं। अब वो नेगेटिव विचार से खाया हुआ खाना अंदर जाकर क्या इंपैक्ट करेगा? नेगेटिव इंपैक्ट करने वाला है। जबकि एक गरीब परिवार की माता को जो भी मिलता है वो खुश होकर खा लेती है कि चलो इससे मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती मिलेगी, तो वो चीज बादाम से और काजू पिस्ता से ज्यादा इंपैक्ट कर जाती है। और हमारा महंगे भाव का लाया हुआ काजू पिस्ता नेगेटिव विचार से खाने की वजह से कोई फायदा नहीं करता। तो यहां पर मैंने आपका ढेर सारा पैसा बचा दिया, राइट। अब हमें जो भी खाने को मिलता है हम खुश होकर, हैप्पी होकर और उस खाने को मैसेज देकर खाएंगे कि तुझे खाने से मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाने वाली है, तुझे खाने से मेरा बेबी हेल्दी होने वाला है। ऐसा मैसेज देकर आप जब खाना खाओगे ना, तो उसकी और ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होगी। ऐसा ही इंपैक्ट पड़ता है खाना बनाते समय आप कैसा विचार रखते हो, और खाना कमाते समय, वो पैसा कमाना पड़ता है ना खाना खरीदने के लिए, उस समय आप कैसे विचार रखते हो उसकी भी इंपैक्ट होती है। हम सभी को अनुभव होगा, जब भी घर में कोई पूजा होती है
जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा, या हम गणपति स्थापना करते हैं गणेश उत्सव के समय, तो पूजा वाले दिन जब भी हम कुछ बनाते हैं तब वो बड़ा टेस्टी लगता है, राइट? सब कोई प्रसाद 2-2 3-3 बार मांगते हैं खाने के लिए। वही प्रसाद आप पूजा के अगले दिन वापस बनाओ, सेम रेसिपी सेम हाथ से बनाओ, टेस्ट नहीं आता ना सेम। सब मना कर रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ हुई? बनाने वाला वही, रेसिपी वही, अभी 24 घंटे पहले तो बनाया था, तब तो सब कुछ बढ़िया था, अब 24 घंटे में क्या बैंड बजी? सीधा सा रूल है, प्रसाद जब बन रहा होता है तब आपके मन में कितने पॉजिटिव विचार होते हैं, तब आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो तो कि ये भगवान को चढ़ने वाला है, प्रसाद के लिए बन रहा है, तो वो पॉजिटिव विचार उस खाने में चला जाता है, और वो खाना बनने के बाद हम भगवान को परोसते हैं, तो रही बची कुची कसर भी अगर उस खाने में अगर कुछ नेगेटिव रह गई होगी ना, तो वो भी हट जाएगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम रोज पूजा नहीं कर सकते, रोज भगवान को भोजन नहीं चढ़ा सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो खाना पकाते समय पॉजिटिव विचार करिए, उसे भगवान को परोसिए और फिर उस खाने को ग्रहण करिए पॉजिटिव विचारों के साथ। तो कोई डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ इतना ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज हो जाएगा और हेल्दी बच्चा पैदा होगा। है ना आसान? हम कितनी फालतू चीजों के पीछे भागते दौड़ते रह रहे थे, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाइट को लेकर स्पेसिफिक सवाल आता है कि मैं पपीता खा सकती हूँ या नहीं, या मैं केला खा सकती हूँ या नहीं, तो इंटरनेट के भरोसे पर मत रहिए, ऑनलाइन किसी से सलाह मत लीजिए। ये बात आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर को पूछनी है, अपने गायनेक को पूछनी है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपका शरीर एक अनोखा शरीर है, उसकी स्पेसिफिक कंडीशन आपके डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने आपका बॉडी चेकअप किया है, उन्होंने आपके ब्लड रिपोर्ट्स को जांचा है, उन्होंने आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट्स को देखा हुआ है। तो जब तक आपकी रिपोर्ट्स को मैं नहीं जानता, तब तक मैं अगर आपको कोई जनरल सलाह देता हूं तो वो फायदामंद कम, नुकसानदायक होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्यों छेड़खानी करना अपने आप से? और जब हमने डॉक्टर रखा हुआ है, हमने डॉक्टर के पास कंसल्टिंग लिया हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है? हम क्यों किसी और के भरोसे पे रह जाते हैं? तो अगर कोई भी इंसान आपको मेडिकल रिलेटेड गाइडेंस ऑनलाइन दे रहा है ना, तो वो आपका शुभचिंतक होने की जगह आपका नुकसान करने वाला इंसान ज्यादा होने के चांसेस है। बेटर है कि मेडिकल रिलेटेड कोई भी एडवाइस सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के गायनेक डॉक्टर से लीजिए, या ऐसे डॉक्टर से लीजिए जो आपका फिजिकल चेकअप भी कर सकता हो या आपके रिपोर्ट्स को प्रॉपर स्टडी कर सकता हो, राइट? आजकल इंटरनेट पर इतनी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, हर कोई डॉक्टर ऑनलाइन गाइडेंस देने को तैयार होकर बैठ जाते हैं, वीडियोस के व्यू बढ़ाने के लिए या लोगों के पास से एक सिंपैथी गेन करने के लिए। पर हम क्या सिंपैथी गेन करवाने के लिए बच्चे को जन्म दे रहे हैं किसी की? हमें हमारे बच्चे की और हमारी खुद की केयर करने के लिए बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, और इसीलिए मेडिकल रिलेटेड सलाह कभी भी ऑनलाइन नहीं लीजिए, खास कर प्रेगनेंसी के दौरान, राइट? नॉर्मल सर्दी जुकाम है तब भी मेडिकल प्रोफेशन वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो उस समय भी मना करते हैं, पर ठीक है, फिर भी हम लोग आजकल घर में ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो पैरासिटामोल ले लिया या कुछ भी ले लिया, वो सब नॉर्मल लाइफ में ठीक है, बट प्रेगनेंसी के दौरान मेहरबानी कर ऐसा कोई भी चांस मत लीजिएगा, राइट? स्टिल डाइट को लेकर आयुर्वेदा में एक पर्टिकुलर नॉलेज दिया हुआ है, कौन से महीने में कौन से इंग्रेडिएंट्स ज्यादा खाने चाहिए, राइट? कौन सी चीज ज्यादा खानी चाहिए उस पर फोकस मत करिए, फोकस करिए इंग्रेडिएंट्स पर। लाइक 5वें महीने में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तीसरे महीने में कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये क्यों होती है? उस समय पर्टिकुलर प्रकार के ऑर्गन्स बच्चे के डेवलप हो रहे हैं, तो उस हिसाब से माता को उन सप्लीमेंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वो सप्लीमेंट किस चीज में से ज्यादा मिलते हैं, वो खाना खाने की कोशिश करिए। ऐसा पूरा डाइट प्लान प्रेगनेंसी के मंथ वाइज इंग्रेडिएंट के अनुसार हमने एप्लीकेशन में दे रखा है, ताकि आपको डाइट के लिए कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। उसको फॉलो करते हुए पॉजिटिव विचारों के साथ आप डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हो। क्लियर? कितना आसान था डाइट और योगा, और हम फालतू में 9 महीने तक टेंशन में घूमते रहते हैं। हर 15 दिन में हम किसी नए इंसान को कंसल्ट करते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं।
उन्होंने कहा था केला नहीं खा सकते, ये कह रहे हैं केला खा सकते हैं, वो कह रहा था केला का जूस पी सकते हो शेक बनाकर, पर कोरा डायरेक्ट नहीं खा सकते। अब जितने इंसान से पूछोगे हर कोई अलग अलग ही आंसर्स देने वाला है। तो हमें प्रैक्टिकल बनना है। क्लियर? तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि गर्भ संस्कार का पालन एग्जैक्टली कैसे हो सकता है। सिंपल लाइंस में अगर समझा जाए तो ये 12 एक्टिविटीज हैं जिन्हें हमने पिछले 3 दिनों में अच्छी तरीके से समझा। इन 12 एक्टिविटीज को रोजाना करना है। कितनी क्वांटिटी में? हर चीज एक। जैसे कि पहला जो है डियर मॉम, ये एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट है जो हमने एप्लीकेशन में डाला है। प्यारी माँ, आपका बेबी रोज सुबह उठते के साथ ही आपको कुछ मैसेज देता है कि मम्मा जब तू पानी पीती है ना तो मुझे है ना शावर फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर बारिश हो रही है। तुझे है ना प्रेगनेंसी के दौरान रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। अब मैं आपको सीधा सीधा भी कह सकता था कि अंजना जी आपको प्रेगनेंसी के दौरान रोज 10 ग्लास पानी पीना है, वो बात पल्ले पड़ती, एक्सेप्ट होती? नहीं होती। पर जब बेबी कहता है कि मम्मा 8 से 10 ग्लास पानी पीना है और जब तू पानी पीती है तो मुझे शावर वाला फीलिंग आता है, तो आप 10 ग्लास पानी पियोगे कि नहीं? रोज इस तरह हम आपको एक टास्क देते हैं कि जिसके द्वारा आपकी हैबिट्स इंप्रूवाइज हो। जो जानते तो हम सभी है कि ये इंप्रूव करना है प्रेगनेंसी के दौरान, पर आसानी से हो पाता नहीं है। ठीक उसी तरह दूसरी एक्टिविटी है गर्भ संवाद, कि आपको रोज अलग अलग गर्भ संवाद करवाए जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले 2 दिनों में भी किया और सभी की फेवरेट एक्टिविटी रही गर्भ संवाद। तो ऐसे रिकॉर्डेड करीबन 120 गर्भ संवाद हमने तैयार कर कर एप्लीकेशन में रख दिए हैं। आप उनको डे बाय डे सुन सकते हैं। सो मेडिटेशन भी हो गया और बेबी के संग एक पावरफुल बातें, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। फिर आता है बायोग्राफी। अब अलग अलग महान पुरुषों के किस्से पढ़ने के लिए कितनी सारी बायोग्राफी ढूंढने जाएंगे? इज इट नॉट पॉसिबल ना कि हम सारी बायोग्राफीज खरीद कर ले आए, क्योंकि महंगी भी आती है। एक एक बायोग्राफी 1000 1500 रुपए की आती है और पूरी तो पढ़नी भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 50 से ज्यादा अलग अलग महापुरुषों के और स्त्रियों के लाइफ को स्टडी किया और उनके चुनिंदा किस्सों को छाटा, उनको गुणों के हिसाब से डाइवर्ट किया और रोज एक किस्सा हम यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। फिर आता है डाइट प्लान। तो प्रेगनेंसी के अनुसार क्या, आपके मंथ के अनुसार क्या बेस्ट है, वो आपको खाने का सजेशन मिल जाएगा विथ रेसिपी। अब हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सभी का एक प्रॉब्लम रहता है कि मूड चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से खाने की डिमांड भी चेंज होती रहती है। जो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी वो अचानक से खानी नहीं पसंद आती, और जो बिल्कुल पसंद नहीं था वो खाने का मन करता है। अब इन सब के बीच में हेल्दी फूड का हिस्सा कहाँ गया? वो तो ऑप्शन नहीं निकल जाता है। तो आपके प्रेगनेंसी के मंथ के अनुसार जो इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बेहतर हैं उन्हीं की रेसिपी हम आपको सजेस्ट करेंगे, ताकि उन रेसिपीज का इस्तेमाल करते हुए आप थोड़ा बहुत आपका इंटेक पॉजिटिव बना सको। फिर आता है स्टोरीज। प्रेगनेंसी के दौरान रोज एक अच्छी कहानी सुननी है जिसमें से हमें कुछ मोरल मिल सके, तो रोज एक कहानी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक्टिविटी ऑफ द डे, मतलब राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो हमने डिस्कशन किया था डे 1 कि किसी दिन ड्राइंग करना है, किसी दिन आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, किसी दिन म्यूजिक सुनना है, किसी दिन रंगोली करना है, तो रोज कौन याद करवाएगा कि आज कुछ नया ट्राई करो। और अगर हमें खुद चॉइस करनी होगी तो हम क्या चॉइस करेंगे? हमें जो आता है वही करेंगे, हम कुछ नया डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आपको रोज अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कॉन्स्टेंटली याद आता रहे कि चलिए कल मैंने ड्राइंग किया था, आज स्केच कर लो, आज स्टोन पेंटिंग करना है, आज क्राफ्टिंग का काम करना है। तो जितने वेरिएशंस आप करोगे उतना क्वालिटी हम बेबी का पावरफुल इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक उसी तरह श्लोक, साखी, कड़ी, तो कौन से श्लोक पढ़ने हैं, इनके अर्थ कहाँ पर ढूंढने जाएंगे, उनको एग्जैक्टली कैसे गाया जाता है वो कैसे पता चलेगा। तो म्यूजिक के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, अर्थ के साथ श्लोक हमने यहाँ पर रेडी कर रख दिए हैं ताकि आप अनुकूलता के हिसाब से उन्हें पढ़िए, उन्हें सुनिए और उन्हें कंठस्थ करने की कोशिश करिए। तो जितना हो सके उतना आसान बनाने का हम यहाँ पर आपका काम कर रहे हैं। फिर वीडियो,
तो जैसे आगे हमने डिस्कस किया था कि YouTube, Facebook पर देखते हैं तो भटक जाते हैं। यहाँ पर जो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वही आपको दिखाया जाएगा। बस वही वीडियो देखना है, आलतू फालतू और कुछ देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर बारी आती है प्रेयर की। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड की हुई प्रेयर्स हमने ऑलरेडी रेडी कर रख दी है। रोज सुबह आपको एक प्रेयर बजानी है और उसे सुनते हुए आराम से अपने इष्ट देव की प्रार्थना करनी है। फिर योग की बात जैसे मैंने आगे कही कि आपके सेमेस्टर वाइज, डे वाइज आज कौन सा योग करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, एक्सपर्ट्स के वीडियोस के साथ गाइडेंस रेडीमेड मिल जाएगा। तो आसान हो गया काम यहाँ पर भी करना। ब्रेन एक्टिविटी के अंदर रोज एक नया पजल सजेस्ट किया जाएगा। मैथ्स के जितने भी लॉजिक्स है, जितने भी फॉर्मूला है, हर थॉट आपके मन में एक बार प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिले, इस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है ताकि हर वेरिएशंस बच्चे के मन में क्लियर हो। ज्योग्राफी भी आ जाए, ज्योमेट्री भी आ जाए, सारे वेरिएशंस वहां पर क्लियर किए जाएंगे। उसी तरह गर्भ सत्संग में डिफरेंट टाइप ऑफ सत्संग रिलेटेड एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप जिस धर्म को या संप्रदाय को बिलोंग करते हैं उसके रिलेटेड एक्टिविटी करिए। लाइक मैंने अगर आपको मंत्र जाप करने का कहा, तो आप अगर हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी का मंत्र गाइए, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का मंत्र गाइए। अगर मैं आपको ग्रंथ पढ़ने के लिए कहता हूं, आप हिंदू हैं तो गीता पढ़िए, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो कुरान पढ़िए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो बाइबल पढ़िए। तो इस तरीके से हम फ्लेक्सिबली अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार इसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके का पूरा रेडीमेड सिस्टम यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की है। अब ये सब तैयार अगर इस तरीके से मिल जाता है, तो आप में से कौन कौन रेडी है कि आज से लेकर डिलीवरी के दिन तक हम लोग रोज ये 12 एक्टिविटीज करेंगे, और ये बात का प्रॉमिस आपको अपने आप को देना है। तो आप में से जो लोग प्रॉमिस करते हैं कि यस डेफिनेटली हम ये एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पर करेंगे, वो सभी चैट बॉक्स में प्रॉमिस लिखकर भेजेंगे, और ये प्रॉमिस आपको अपने आप को और अपने बेबी को देना है, राइट? अगर मुझे बेबी को पायलट बनाना है, व्हाट एक्सरसाइज कैन डू, प्लीज चेक क्लारा दत्ता's वीडियो को प्रेगनेंसी एक्सरसाइज। यस, प्रॉमिस 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 ऑलमोस्ट सभी की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं। सेम यूट्यूब पर भी हमारे काफी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं एंड दे ऑल आर एक्साइटेड कि यस हम रेडी हैं इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए। देन सुपर। तो अब मैं आपको कुछ और सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ। हम लोग पिछले 14 इयर्स से इस विषय पर काम कर रहे हैं और 14 सालों में करीबन 6 लाख से ज्यादा प्रेग्नेंट कपल्स को या प्लानर्स को हमने गर्भ संस्कार के विषय में इंफॉर्मेशन दी, उन्हें कोर्स करने के लिए जागरूक किया और इन सारी एक्टिविटीज के साथ उन्हें कनेक्ट करवाया। इनिशियल डेज में हम क्या करते थे कि लोगों को फिजिकल मटेरियल प्रोवाइड करते थे। एग्जांपल के तौर पर स्टोरी के लिए हमने आपको 200 कहानियां पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट कर या व्हाट्सएप पर भेज दी। अब 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जब हम वापस कॉल कर प्रेग्नेंट कपल का कांटेक्ट करते कि क्या हुआ, पढ़ाई, आपने कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या रिप्लाई आता कि हाँ करने वाले हैं, थोड़ा काम में बिजी रहते हैं, भूल जाते हैं, रह जाता है, पढ़ी है ना कहानियां, अभी कर लेंगे और अभी करते 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 डिलीवरी का दिन आ जाता। ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी है ना। हम क्या करते हैं, जब चीज हमारे पास रेडी पड़ी होती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। अभी कर लेंगे में गाड़ी छूट जाती है। ऐसे करीबन 6-7 मेजर क्वेश्चंस हमने आइडेंटिफाई किए कि सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद प्रेग्नेंट कपल्स क्यों गर्भ संस्कार फॉलो नहीं कर पाते। तो कोई कहता है टाइम नहीं मिलता, हम वर्किंग वुमन है या हम हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ तो 24/7 वर्किंग वुमन ही कहलाएगी, तो इन सब वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। कोई कहता है हमें किताबें पढ़ना नहीं पसंद है, कोई कहता है कि ये सारा करने के लिए सेशंस अटेंड करने कहाँ जाए, क्लासेस अटेंड करने कहाँ जाए, वर्कशॉप अटेंड करने कहाँ जाए, और अभी तो कोरोना चल रहा है तो वैसे भी बाहर जाना मुश्किल है। कोई कहता है कि ये सब करने के लिए खर्चा कितना होता है, बहुत महंगी किताबें मिलती है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो ढेर सारे एक्सक्यूजेस हैं। इन सारे एक्सक्यूजेस को हमने एक ही सॉल्यूशन में बिल्कुल साफ कर दिया, और वो सॉल्यूशन बताने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं,
जब भी हम गर्भ संस्कार का या प्रेगनेंसी में पॉजिटिव रहने का कोई भी कोर्स करने की कोशिश करें या उसे अपने आप से भी फॉलो करने की कोशिश करें, तो 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। आपका कोर्स प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर वृषाली जी का दूसरा महीना चल रहा है और निधि जी का छठा महीना चल रहा है। मैं दोनों को एक जैसा डाइट प्लान, एक जैसा योगा का प्लान दूंगा तो चलेगा? नॉट पॉसिबल, राइट? दोनों का ट्राइमेस्टर अलग है, मंथ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। तो कॉमन कोर्स नहीं हो सकता, कस्टमाइज होना चाहिए व्यक्ति के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अंजना जी चाहती है मेरा बच्चा शूरवीर होना चाहिए और वैभवी जी कह रही है कि मेरा बच्चा शांत स्वभाव का होना चाहिए। मैं दोनों को गांधी जी की और महावीर स्वामी की कहानियां भेज दूं पढ़ने के लिए तो चलेगा? वैभवी जी का काम हो गया, पर अंजना जी को शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की कहानियां पढ़नी पड़ेगी ना। तो हमारा कोर्स हमें बच्चे में जो क्वालिटीज लानी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जनरल कोर्स करने से फायदा नहीं होने वाला। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे जो पसंद है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं रखना है, मुझे बेबी के लिए जो अच्छा है उस पर फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको करेला नहीं पसंद है, पर अगर आप अभी करेला नहीं खाओगे तो फिर बेबी को करेले का टेस्ट पता कैसे चलेगा? तो भले आपको पसंद नहीं है, पर अगर हम आपको रेसिपी में बताते हैं कि आज करेले की सब्जी खानी है तो कोशिश करिए एटलीस्ट 1 चमची चखिए उससे। पर ये आपको बताने वाला तो कोई चाहिए ना, कि जो याद रखकर आपके प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग आपको जो गुण बच्चे में चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग और आपके बच्चे के लिए जो बेहतर है वही सारी एक्टिविटीज रोज सजेस्ट करता रहे। सोचिए, काश अगर कोई ऐसा दोस्त हो जो 24 घंटे हमारे साथ रहे और ये सारी टेंशन वो रखे। आपका प्रेगनेंसी का दिन कौन सा है वो भी वो याद रखे, बच्चे में कौन से गुण लाने हैं वो भी वो याद रखे, बच्चे के लिए बेटर क्या है वो भी वो याद रखे, और दिन में हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको याद करवाता रहे कि मम्मी चलो पानी पीने का टाइम हो गया, मम्मी चलो स्टोरी का टाइम हो गया, मम्मी चलो एक्टिविटी का टाइम हो गया, मम्मी चलो गर्भ संवाद का टाइम हो गया। तो कैसा रहे? बस ये जो चेहरे पर स्माइल आ रही है ना, उसी स्माइल का सॉल्यूशन हमने तैयार कर दिया है। दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के नाम से 2 साल पहले हमने प्रिपेयर किया था, और पिछले 2 साल में 40,000 से ज्यादा मदर्स 45 कंट्रीज में इस कोर्स को कर रही है। और ये दुनिया का एकमात्र और सबसे पहला ऐसा कोर्स है जो डे वाइज भी चलता है, आपके गुणों के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा, और जो चीजें बच्चे के लिए अच्छी हैं उन्हें डे बाय डे आपको रोज याद भी करवाता रहेगा। और साथ ही साथ ये इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि हमें पता है कि आप में से काफी लोग 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें महीने में प्रेग्नेंट हैं और आपको किसी वजह से इस पावरफुल नॉलेज के बारे में लेट पता चला है। तो क्या अब हम नहीं कर सकते गर्भ संस्कार? डोंट वरी, आप अभी भी कर सकते हो। ये कोर्स आप जब शुरू करते हो ना, तब से लेकर आपकी डिलीवरी के दिन तक जो दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे रीडिजाइन कर कर आपको देते हैं। तो अगर 40,000 माताएं आज इस कोर्स को कर रही हैं तो सबका कोर्स अलग जा रहा है। ज्यादातर हम लोग कोर्स में क्या समझते हैं कि भाई सबको एक जैसा मिलना चाहिए, पर प्रेगनेंसी सबको एक जैसा नहीं है। प्रेगनेंसी सबके लिए अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ इस पूरी दुनिया का ये एक ही कोर्स है। अब 3 दिन से तो हम सारी बातें कर रहे थे, अब कोर्स की बात आई है तो आप सभी के मन में विचार आ रहा होगा कि अब सर कुछ फीस मांगेंगे, अब कहेंगे कि जेब ढीली करो, 5-10 हजार रुपए निकालो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, राइट? बट डोंट वरी, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था और स्टेमसाइट इंडिया ने मिलकर ये पूरा प्रोग्राम आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम प्रेग्नेंट कपल्स को हेल्प करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो इस कोर्स की कुछ नॉमिनल फीस है, डेफिनेटली ये 5-10 हजार 15 हजार का नहीं है जैसे कि गर्भ संस्कार के बाकी सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, वैसा कमर्शियल कोर्स नहीं है। इसकी फीस बहुत नॉमिनल है जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। पर इसकी फीस के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? तो टेक्निकली रोज ये सारी एक्टिविटी कस्टमाइज वे में आपको पहुंचानी जो होती है ना, उसके पीछे कुछ खर्च होता है, बस वही खर्च हम आपसे लेते हैं। बाकी
मटेरियल का कोई कॉस्ट ना हम पहले लेते थे ना अभी लेते हैं, मटेरियल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो वो पूरी व्यवस्था क्या है मैं आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन में हमें क्या क्या मिलेगा। तो जैसे हमने आगे समझा 12 की 12 एक्टिविटीज रोज मिलेगी। डेली आपका योगा सेशन आ जाएगा एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंगली। डेली डाइट चार्ट विथ रेसिपी आपको मिल जाएगा। 120 से ज्यादा गर्भ संवाद अफर्मेटिव सजेशंस आपको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाएंगे। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज करनी होती है वो आपको वहां पर सजेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा डेली न्यू रीडिंग मटेरियल। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कुछ समय के बाद रिवाइज करवानी होती है। अब ये बात हमें कोई नहीं समझाता, हमें लोग क्या कहते हैं, बस रोज नई कहानियां पढ़िए, रोज नया एक्टिविटी करते रहिए। क्या हम रोज नया खाना खाते हैं? या स्कूल में जब हम छोटे थे तब पढ़ते थे तो क्या पहली दिन एक बार हमें 1 2 3 4 सिखाया तो हमें याद रह गया था? नो, हमें कुछ चीजें रिवाइज करनी होती है टाइम बिंग। ज्यादातर प्रेगनेंसी कोर्सेस रिवीजन करवाते ही नहीं है। इस कोर्स को रिवीजन के साथ डिजाइन किया गया है। तो कुछ एसेंशियल चीजें टाइम बिंग आपको बार बार रिवाइज भी करवाई जाएगी। इसके अलावा रेगुलर लाइव वीडियो वर्कशॉप्स, इवन रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स के लिंक्स आपको एप्लीकेशन में भी मिलेंगे। तो आपको वर्कशॉप कभी भी अटेंड करना है, आप अपनी एप्लीकेशन के वर्कशॉप सेगमेंट में चले जाइए। 6-7 दिन के पूरे वर्कशॉप आप एनी टाइम अटेंड कर सकते हैं। ऐसे लाइव वर्कशॉप के लिए लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, वो वर्कशॉप भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इसके अलावा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पर्सनल सपोर्ट, एप्लीकेशन के अंदर हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। 24/7 आप एनी टाइम उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपना गर्भ संस्कार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछकर एक्सपर्ट्स के साथ काउंसलिंग ले सकते हैं। नॉर्मली काउंसलिंग के लिए लोग अलग चार्जेस लेते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए भी कोई अलग चार्ज नहीं है। अगेन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ऐप। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद एक प्रॉब्लम आता है, डेली मोटिवेशन और रिमाइंडर का क्या? तो एप्लीकेशन को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिजाइन किया है। क्या करते हैं हम? एग्जाम्पल के तौर पर दिन के 12 बज गए और दीक्षा जी किसी काम में बिजी थे, तबीयत ठीक नहीं थी, गेस्ट आ गए थे, कोई भी रीजन था और एक भी एक्टिविटी शुरू नहीं कर पाए। तो क्या होगा? एप्लीकेशन आप पर वॉच रख रही है, वो आपको एक पर्सनल मैसेज भेजेगी नोटिफिकेशन के तौर पर। उसमें लिखा होगा, प्यारी माँ आज तो बहुत बिजी लगती है, थोड़ा वक्त मेरे लिए निकालना, एक कहानी तो पढ़। ऐसा मैसेज पढ़ने के बाद दुनिया की कौन सी माता अपने आप को एक्टिविटी करने से रोक पाएगी? इस तरीके से दिन में 3-4 बार हम आपको रिमाइंडर भेजते रहते हैं ताकि आप एक्टिविटीज करने के लिए मोटिवेट होते रहो। साथ ही साथ पूरा रिपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम, कौन सी एक्टिविटीज आपने की, उस एक्टिविटी से बच्चे का IQ, EQ, PQ, SQ कौन सा सेगमेंट डेवलप हो रहा है वो आपको पता चलता रहेगा। बेबी का इस महीने में क्या वेट होगा, क्या रंग होगा, क्या साइज होगा, सॉरी रंग नहीं, रंग थेरापी, ऑर्नामेंट थेरापी, म्यूजिक थेरापी, वो सब भी वापस इसी एप्लीकेशन में इंक्लूड है। मंत्र, श्लोक, प्रेयर इंक्लूड है और ये सब कुछ आपके प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग और जो क्वालिटीज आपने बच्चे के लिए डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। इजंट इट अमेजिंग कि सारा टेंशन एक ही झटके में खत्म। बस एप्लीकेशन को फॉलो करते रहो, कहीं भी दिक्कत आए तो अपने काउंसलर्स के साथ बात कर लो और आपका गर्भ संस्कार कंप्लीट। इस एप्लीकेशन को आज ही आप सभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइफ टाइम गिफ्ट दीजिए अपने आप को। खास कर मैं हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे तो सभी अपने अपने वाइफ को ये एप्लीकेशन तुरंत गिफ्ट करें। और खास इस एप्लीकेशन की फीस क्या है वो भी मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एप्लीकेशन का नाम है गर्भ संस्कार गुरु और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर सब जगह मिलेगी। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों भाषा में पूरा कोर्स डिजाइन कर रखा गया है और इस पूरे कोर्स की फीस ओनली 1400 प्लस GST 1652 रुपए है। मंथली चार्ज नहीं है, सिर्फ वन टाइम पे करना है। आपका 5वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है, डजंट मैटर, आपको सिर्फ एक बार 1652 रुपए का पेमेंट करना है और आपकी डिलीवरी के दिन तक का पूरा कस्टमाइज कोर्स बनकर आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगा।
अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इतनी कम फीस में इतना सारा डिटेल वाला कोर्स कैसे? तो अगेन हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है कि गर्भ संस्कार का ज्ञान दुनिया के हर एक व्यक्ति तक हमें पहुंचाना है, और पैसे की वजह से कोई गर्भ संस्कार से वंचित हो जाए ऐसा नहीं होने देना है। तो हम मैक्सिमम चीजें सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। सिर्फ इस एप्लीकेशन के अंदर टेक्निकल जो खर्च है उसको कवर करने के लिए हमें ये छोटी सी फीस रखनी पड़ती है, विच इज लेस देन सोनोग्राफी फीस। एक बार सोनोग्राफी करवाने जाते हैं ना तो अभी 2000 का बिल बनता है। अभी तो लॉकडाउन है, खाना खाने के लिए हम बाहर होटल में नहीं जाते, पैसा बच रहा है, तो वही पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर लीजिए, यूं समझ लीजिए, क्योंकि खाना खाने बाहर जाते हैं तब भी 1500-2000 का बिल बनाकर आते हैं ना। तो इतना आसान तरीके से हम गर्भ संस्कार कर सकते हैं। तो आप सभी को ये गिफ्ट अपनी वाइफ को, या अगर आप अकेले अभी इसे अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये गिफ्ट अपने आप को देनी है। अभी जो लोग इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं उनके लिए स्टेमसाइट इंडिया और मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम की तरफ से एक और स्पेशल बेनिफिट है। आप कोर्स सब्सक्राइब करते समय फुल कोर्स सिलेक्ट कर कूपन कोड ऑप्शन में जब जाएंगे तो वहां पर आपको MGS लिखना है, सब कुछ स्मॉल फॉन्ट में। कूपन कोड में MGS लिखने के बाद वहां पर नीचे एक ऑप्शन है जहां से आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। तो ऐसा करने पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो अल्टीमेटली 1652 की जगह 1487, सिर्फ 1487 रुपए में ये पूरा कोर्स आपको आज मिल जाएगा थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, राइट। तो सिर्फ पहले 50 फ्रेंड्स के लिए ही ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा पाए हैं। तो जो भी पहले 50 फ्रेंड्स इस कोर्स को अभी स्टार्ट करेंगे उनको ये एप्लीकेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसे शुरू करने के लिए आपको गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, नॉर्मल यूजर के तौर पर साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को तुरंत अपने मोबाइल में शुरू कर सकते हो। वहां पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए कुछ और ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लिया, उनकी डिलीवरी होने के बाद उन्हें कैसे बेनिफिट्स हुए, उनके एक्सपीरियंसेस यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक माता ने उनके बेबी का फोटोग्राफ भेजते हुए मैसेज लिखा है, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, और बेबी का वेट था 3 किलो से ज्यादा। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाली 73% से ज्यादा मदर्स के रिव्यू आए हैं हमारे पास कि जिनके बेबी 3 किलो से ज्यादा वेट के हुए हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, अगर माता प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इंसान पॉजिटिव होता है ना तो उसको पेन का एहसास कम होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो रखी है बात। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की एक्टिविटीज करते करते आप इतना पॉजिटिव हो जाते हो कि जिसकी वजह से डिलीवरी के समय भी पेनलेस फीलिंग आती है माताओं को। ऐसी ही एक और मदर है जिनकी डिलीवरी हुई ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट जब पैदा होते हैं ना तो 1 या 2 बच्चा कंपलसरी उन्हें NICU में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि तीनों की फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं होती है। 1 या 2 बच्चे कमजोर ही पैदा होते हैं। ये तीनों के तीनों बच्चे इतने हेल्दी थे कि डिलीवरी के थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आप इनको घर ले जा सकते हो। पर डॉक्टर के मन में बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि लाखों केसेस में, ट्रिपलेट्स के लाखों केसेस में हार्डली एक केस ऐसा निकलता है कि जहां पर बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं। तो डॉक्टर ने थोड़ा ह्यूमरसली माता को पूछा कि भाई आपने क्या खाकर पैदा किया था। नॉर्मली बच्चा हट्टा कट्टा होता है तो पूछते हैं ना कि क्या खाया था प्रेगनेंसी में। तो माता ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर खाना तो नॉर्मली खाया था, पर गर्भ संस्कार खाया था, साथ ही साथ गर्भ संस्कार दिया था बच्चों को, जिसका रिजल्ट है कि बच्चे इतने हेल्दी पैदा हुए हैं। और ये बच्चे जुलाई 2020 में कोरोना पैंडेमिक के माहौल में ही पैदा हुए थे। ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर था इस समय। ये बच्चे आज बड़े होने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और इन बच्चों की माता हर 2-3 दिन में, 15 दिन में हमें मैसेजेस भेजती रहती हैं कि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि एक बच्चा भी होता है ना तो सिर पर सवार रहता है, उसको संभालने में माता पूरी थक जाती है। मेरे 3 हैं पर फिर भी इतने शांत है कि मुझे दिक्कत ही नहीं आती है। मैं बिल्कुल आराम से सब कुछ संभाल लेती हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाता है। इतना अच्छा स्वभाव है बच्चों का। ऐसी हैप्पी और हेल्दी फैमिलीज
लाखों की तादाद में बनती जा रही है। इसके अलावा ऐसे भी कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने सोचा था कि मेरे बेबी के गालों पर डिंपल होना चाहिए, उसकी आंखें ऐसे कलर की होनी चाहिए, जैसा उन्होंने सोचा था उस अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन को फॉलो किया, उन्हें वैसे रिजल्ट्स मिले हैं। अनगिनत एग्जांपल्स हैं, पेजेस भर भर कर डिलीवरी होने के बाद मदर्स पहले हमें फोटोग्राफ भेजते हैं, फिर अपने फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं। इतना लगाव, इतना जुड़ाव हो जाता है उनके साथ। तो पूरा दिन आपको मैं रिव्यूज दिखाता रहूं ना तो अभी खत्म नहीं होंगे, इतने सारे फीडबैक्स हैं सभी की तरफ से। आप चाहें तो इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। राधिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एप्लीकेशन का कोर्स शुरू कर दिया है। बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, और हम आप सभी के साथ है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। आपको कभी भी कोई क्वेरी आए तो आप एनी टाइम मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का या स्टेमसाइट इंडिया की टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हेल्प हमसे पॉसिबल होगी हमारी टीम हमेशा करेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये प्रोसेस रहेगी, 1 2 3 4 स्क्रीन है जहां जिनके स्टेप बाय स्टेप आप एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप एनी टाइम हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह भी बताने वाला हूं थोड़ी ही देर में। तो अल्टीमेटली टाइम को लेकर कोई क्वेरी अब नहीं बची, क्योंकि एप्लीकेशन है, आप दिन में कभी भी एक्टिविटीज कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। सब कुछ सिंपल एंड कंसाइज वे में दिया हुआ है। सारा गाइडेंस एक्सपर्ट्स के माध्यम से दिया हुआ है। करीबन 70 प्लस एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस कोर्स को डिजाइन किया है। तो हर एक कंटेंट को हमने अलग अलग लोगों से वेरीफाई करवाया है। ऐसा ही नहीं कि भाई कहीं से मिला और उठाकर डाल दिया। हर एक चीज को इन डेप्थ रिसर्च किया गया है, फिर एप्लीकेशन में डाला गया है। तो उसकी इंपैक्ट बहुत अद्भुत तरीके से आप पर आएगी। अफोर्डेबल है, कोई इतनी महंगी फीस नहीं है कि जो हम उसे अफोर्ड ना कर सकें। और रेगुलर मोटिवेशन के लिए हमने डियर मॉम सेगमेंट और मदर इन लॉ के फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली हुई है, जो बार बार हमें याद करवाती रहेगी एक्टिविटीज करने के लिए। प्लानर्स भी इस एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं। जब आप कंसीव करेंगे तब से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तेजस्विनी जी, मराठी में एप्लीकेशन अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आने वाले 2-3 महीनों में मराठी लैंग्वेज में भी पूरा कोर्स आ जाएगा। बट मीनवाइल आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में से जो भी आपको कन्वीनियंट है उससे इस एप्लीकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन का कोर्स सब्सक्राइब कर चुका है और इसका इस्तेमाल कर रहा है? तो अगर ऐसा कोई है तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करे। यस वृषाली जी, आप शायद एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं, राइट? तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है एप्लीकेशन की एक्टिविटीज करने से। यस वृषाली जी। मैं कल से परसों से यूज कर रही हूँ। जी आपका वॉइस थोड़ा सा स्लो आ रहा है, आपको डिवाइस के पास जाकर थोड़ा बोलना पड़ेगा शायद, या आपका मोबाइल आपके पास ले लीजिए। आपने बताए दिन के बाद मैंने कोर्स शुरू किया है। ओके। और मैं 12 एक्टिविटीज करती हूँ। मतलब आपने अभी 1-2 दिन में ही शुरू किया है या जब याद आता है तब? हाँ, ओके, 1-2 दिन में ही शुरू किया। आपने बताए दिन के बाद। अच्छा, तो मतलब आपने परसों से ही शुरू किया है, राइट? सो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका एक्टिविटीज करने से? आपको आसानी रह रही है सब कुछ करने में? यस हो रहा है, राइट। बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है, दैट्स रियली नाइस। स्टोरीज भी बहुत अच्छी है। स्टोरीज भी बहुत अच्छी है। और एक्टिविटी करने में टोटल कितना समय लगता है पूरे दिन में आपको? एक एक्टिविटी करने में बहुत देर नहीं लगती, एक स्टोरी पढ़ने में 5 आपका माइक शायद अनम्यूट हो गया वापस। यस, अभी आपकी आवाज आ रही है। यस वृषाली जी, आपकी आवाज आ रही है अभी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आपने क्या पूछा? क्या मुझे कुछ आवाज नहीं है। हाँ, मैंने ये पूछा कि आपको टोटल समय कितना लगता है? जैसे कि आपने बताया कि 2-3 मिनट में एक एक्टिविटी हो जाती है एवरेज। हाँ, राइट। मैं 12 एक्टिविटीज एकदम में नहीं करती, थोड़े देर में करती हूँ, एकदम में नहीं करती।
यस यस, यही बिल्कुल सही तरीका है कि हमें एक साथ नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर में एक्टिविटीज करते रहना है, और एवरेज एक एक्टिविटी के पीछे 2-3 मिनट 5 मिनट हार्डली लगता है। सो पूरे दिन में टोटल 30-40 मिनट्स में आराम से सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है, राइट। थैंक यू सो मच रुशाली जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पजल भी खूब अच्छे है। पजल भी अच्छा है, राइट। पजल्स तो या ओवरऑल आपको सारी एक्टिविटीज से संतोष है ना, आपको करने में मजा आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो अल्टीमेटली एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, लाइक हर्षा जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसके लिए कोई ट्यूटोरियल है, तो हमारी यूट्यूब चैनल पर भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, और सेशन खत्म होने के बाद हम आपको जो हेल्पलाइन नंबर्स देंगे वहां पर आप कांटेक्ट करिएगा, तो आपको वहां से ट्यूटोरियल्स के वीडियोस भेज दिए जाएंगे और ऑनलाइन आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा कि कैसे आप इसे शुरू कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली कोर्स सब्सक्राइब करना इज नॉट कंपल्सरी, बट इट्स अ इजी वे कि आप आसानी से कर सकते हो। ये सारा मटेरियल हम खुद से भी ढूंढ सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या आता है कि ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा, ये हमारे लिए सही है या नहीं वो कौन बताएगा। इस वजह से एप्लीकेशन आसानी से सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली हमें ये 12 एक्टिविटीज रोज करनी है, एप्लीकेशन के माध्यम से करिए या डायरेक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आसानी बढ़ जाती है एप्लीकेशन की वजह से, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पूरे 3 दिनों में हमने क्या मेन बातों को सीखा, और जो हमें आज साथ लेकर जानी है। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, राइट। तो जो भी करना है, दिस इज द राइट टाइम। डिलीवरी के बाद सिर्फ 20% ब्रेन बचेगा, अभी 80% ब्रेन पर हमें फोकस करना है। मेडिकल साइंस ने ये क्लियरली प्रूवन कर दिया है कि 80% ब्रेन डेवलपमेंट माता के गर्भ में हो जाता है। सो अल्टीमेटली हमें प्रेगनेंसी को जॉयफुल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, और वर्चुअस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, संस्कारमय वातावरण बनाना है अपनी फैमिली के अंदर, ताकि बच्चे के पास मैक्सिमम पॉजिटिव बातें जा सके। और गर्भ संस्कार का पालन असली में कब से करना चाहिए, तो गर्भाधान से। आपने जब पहली बार तय किया कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तब से लेकर डिलीवरी के दिन तक रोजाना करना होता है। काफी लोग कहते हैं कि हमने यज्ञ करवा लिया है, हमने पूजा करवा ली है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गर्भ संस्कार, 1% भाग हुआ। पर जब तक हम रोज एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तब तक कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अंजलि जी, एप्लीकेशन की फीस है 1400 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 1652 रुपए। पर अगर आज आप इससे सब्सक्राइब करते हैं और कूपन कोड MGS यूज करते हैं, तो ये 1487 में मात्र आपको मिल जाएगा। 5वां टॉपिक जो हमें याद रखना है, गर्भ संस्कार का दैनिक पालन प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार होना चाहिए, और हमें बच्चे में जो गुण लाने हैं उसके अनुसार होना चाहिए। गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के द्वारा हम इसे बड़ी आसानी से और सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें हमेशा याद रखनी है, हम बच्चे के माली हैं, मालिक नहीं है। बच्चा हमारी प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें बच्चे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी है, हमें जितना हो सके कुछ अच्छा उसे सिखाना है। पर फिर बच्चे के ऊपर मालिकाना हक जता कर नहीं बैठ जाना कि तुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, हमने तुझे ऐसा ही बताया है, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा। बच्चा जन्म लेने के बाद वो अपने हिसाब से उसे खिलने की परमिशन दीजिए। हमारा कंट्रोल 9 महीनों में है, हमें 9 महीनों में योग्य मेहनत करनी है, आगे का काम बच्चा खुद संभालेगा। हमें परवरिश इतनी पावरफुल देनी है कि उसके अकॉर्डिंग बच्चा आगे काम करे। सोचिए, अगर एक माली अपने बगीचे में जन्म ले रहे सारे फूलों को अपने कंट्रोल में रखे, उसे मंदिर में चढ़ाने के लिए ना दे, तो क्या ये सही कर रहा है माली? नहीं, फिर तो माली माली नहीं रहा, वो तो मालिक बन गया ना। तो हमें माली बनकर अच्छे फूल बनाने हैं, बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों की महक डालनी है, फिर वो समाज के उपयोग में आना चाहिए, वो देश के उपयोग में आना चाहिए। इस तरीके से हमें उसे तैयार करना है। तो हमारा कार्य है कर्म करना। अंत में गीता सार हमें याद रखना है कि भगवान फल देगा, राइट। हमें योग्य कर्म करना है, तभी हमें योग्य फल जरूर मिलेगा। ये जो पूरा कार्य है, ये मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था किस विचार से कर रही है, तो हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि गर्भ संस्कार ही एक ऐसा पावरफुल ज्ञान है जिसके द्वारा हम एक श्रेष्ठ और संस्कारी समाज बना सकते हैं। देखिए, बलात्कार, भ्रष्टाचार या वृद्धाश्रम, ये सारे शब्द हमें सुनने पसंद नहीं है,
पर ये शब्द क्यों हमें सुनने पड़ते हैं? क्योंकि संस्कारों की कमी है। अगर हर माता पिता अपने गर्भ में जन्म ले रहे बच्चे को स्त्री का सम्मान करना सिखा दे, देशभक्ति सिखा दे, बड़ों का आदर करना सिखा दे, तो आने वाले 15-20 साल के बाद क्या लगता है आपको? हमें भ्रष्टाचार, बलात्कार या वृद्धाश्रम शब्द सुनने मिलेंगे? नॉट पॉसिबल। बस इसी सपने को साकार करना हमारा मिशन है और उस मिशन में हम आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं ना, उनमें हमें ये संस्कारों का सिंचन करना है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था ये कार्य कर रही है। आज आपने इस ज्ञान को जाना है, अब आपके द्वारा आपके संपर्क में आने वाले तमाम प्लानर्स और प्रेग्नेंट कपल्स को ये बात पहुंचनी चाहिए, तभी एक आदर्श समाज बन पाएगा, राइट? तो इस सपने को हमें साथ में मिलकर साकार करना है। इस बात को आगे पहुंचाने के लिए और लोगों को ज्यादा फालतू खर्चा ना करना पड़े गर्भ संस्कार के लिए, क्योंकि हम भी देखते हैं कि इंटरनेट पर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के गर्भ संस्कार के कोर्सेज अवेलेबल हैं और लोगों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे सब फालतू खर्चे बचाने के लिए वो पैसा आप अपने बच्चे के लिए एफडी करवा दीजिए, ताकि जब आपका बच्चा 15-20 साल का होगा ना, तो उसका एजुकेशन का आधा खर्चा उस इन्वेस्टमेंट में निकल जाएगा। गर्भ संस्कार बहुत इकोनॉमिकल है, सिर्फ 1500-1600 रुपए में हो सकता है। तो इसी ज्ञान को ज्यादातर लोगों के लिए के पास पहुंचाने के लिए हमारी 40 से ज्यादा लोगों की टीम काम कर रही है और भारत के करीबन 30 जगह हमने सेंटर शुरू कर दिए हैं। ये सारे सिटीज के नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। अगर आप इनमें से किसी सिटी में हैं तो आप आपके नजदीकी सेंटर पर जाकर भी, अभी तो कोरोना की वजह से सेंटर्स सारे ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, पर फिर आप ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर भी हमारे ट्रेनर्स के साथ मिलकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को वहां पर भेज सकते हैं। इवन हमने गर्भ संस्कार के ट्रेनर्स बनाने के लिए भी एक पूरी मुहिम शुरू की है और करीबन 150 से ज्यादा ट्रेनर्स हमने पिछले 8-9 महीनों में प्रिपेयर किए हैं। आप में से कोई अगर गर्भ संस्कार ट्रेनर बनना चाहता है और अपने आसपास के लोगों को गर्भ संस्कार सिखाना चाहता है, आप डॉक्टर हो, आयुर्वेदा एक्सपर्ट हो, योगा ट्रेनर हो, डाइटिशियन हो, फिजियोथेरापिस्ट हो, टीचर हो, इवन हाउसवाइफ हो, तो अभी आप हमारे साथ जुड़कर आपके आसपास के लोगों को गर्भ संस्कार के इस महान ज्ञान से नॉलेजेबल करा सकते हैं। हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसके लिए चलता है। इसके बारे में अगर आपको और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारे हेल्पलाइन नंबर्स। आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी कोई भी प्रकार का प्रश्न मन में आए, कुछ भी कंफ्यूजन हो गर्भ संस्कार से संबंधित, तो इन तीनों नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। इन पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको तुरंत गाइड करेगी ताकि गर्भ संस्कार से रिलेटेड आपके तमाम प्रश्नों का समाधान कर दिया जाए। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ढेर सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे वर्कशॉप्स के वीडियोस भी इन सभी जगह लाइव होते रहते हैं, तो आप कभी भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी जगह जाकर आप सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको वहां से हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहे। इसके अलावा पेरेंटिंग रिलेटेड हमारे पास एक पावरफुल सॉल्यूशन तैयार किया गया है। पेरेंटिंग गुरु दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें पेरेंटिंग रिलेटेड सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। तो आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आप पेरेंटिंग 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के बारे में सारी जानकारी यहाँ से पा सकेंगे। और आपके परिवार में अगर कोई पेरेंट्स हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई पेरेंट्स हैं, तो उन्हें भी सजेस्ट कर इस एप्लीकेशन का उपयोग कर वो आसानी से अपनी पेरेंटिंग की यात्रा को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर्स की स्क्रीन काफी सारे फ्रेंड्स वापस से मांग रहे थे, तो ये नंबर्स की स्क्रीन है, यहाँ पर से आप नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। अनाभू जी, जयश्री जी और भी सुमन जी, निकिता जी, एवरीबॉडी, आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया है कोर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत पावरफुल डिसीजन लिया है और इसका बेनिफिट आने वाले 2-4 दिनों में ही आप फील करेंगे। लाइक वरुशाली जी ने कहा ना कि अभी 2 दिन ही हुए हैं, बट बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है एक्टिविटीज करने में। वही फीलिंग आप सभी को डेफिनेटली मिलने वाला है। तेजस्विनी जी यहाँ पर पूछ रही है, मैं अभी हिंदी लैंग्वेज का सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ तो बाद में मराठी चेंज हो जाएगा? यस, डेफिनेटली। एप्लीकेशन में आप कभी भी
लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हमने कोई पाबंदी नहीं रखी है। तो आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं और आपको हिंदी देखना है, आप एट अ टाइम जाकर देख सकते हो, उसके लिए आपको अलग कोई चार्ज पे नहीं करना होता, राइट। अब हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड हम शुरू करते हैं। आप में से काफी सारे फ्रेंड्स की तरफ से हमें कुछ क्वेश्चंस मिले थे। अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप अभी भी पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर हमें पूछ सकते हैं। एक सवाल हमारे पास आया था कि बेबी प्रेगनेंसी के दौरान कितना सोता है, राइट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल था हमारी एक मदर की तरफ से। तो बेबी प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर समय 40, 50, 60% समय सोता रहता है, और जब वो सो रहा होता है तो बिल्कुल स्टिफ होकर सोता है, बहुत ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। जागृत अवस्था में ही वो ज्यादा हिलता डुलता है, और स्पेसिफिकली जब 9वां महीना शुरू होता है तब तो करीबन 90%, 95% समय तक वो सोता रहता है। और यही वजह है कि जन्म के तुरंत बाद भी बच्चा ज्यादा समय सोता है। तो ये समय उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट का है। इसीलिए हम सभी प्रेग्नेंट कपल्स को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा है ना, तो अभी ये मत सोचिए कि अब तो लेट हो गए हैं, अब एप्लीकेशन या गर्भ संस्कार करने का फायदा नहीं होगा। ये सबसे मेन टाइम है। 7, 8, 9 मंथ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है बेबी का। तो इस समय हमें ज्यादा फोकस रहना है, और बच्चा सोता रहता है ये सोचकर कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चा भले सो रहा है बट सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। तो आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बच्चा भले सो रहा है बट वो आपकी बातों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उन्हें स्टोर कर रहा है, और ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा तेजी से होता है 7, 8, 9 मंथ में। तो अगर पिछले दिनों में आपने नहीं भी किया है तो 7, 8 मंथ, 9 मंथ को तो बिल्कुल भी मत गंवाइएगा। मैक्सिमम कवर अप हम इस महीने में कर सकते हैं, राइट। फिर एक किसी माता का सवाल था कि मैंने सुना है कि जामुन खाने से बच्चा काला हो जाता है और सफेद चीजें खाने से बच्चा गोरा होता है, राइट। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कोई साइंस कहीं पे भी डेवलप नहीं हुआ है। ये सारी कही सुनी बातें हैं, इन पर बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा। डाइट को लेकर आज हमने जो समझा है ना, वही सही बात है, राइट। और ये बात मैं डंके की चोट पर आपको कह रहा हूं, किसी भी एक्सपर्ट के साथ इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकता, राइट। अनाधा जी कह रही हैं उन्होंने भी एप्लीकेशन ले लिया है। सोनल जी कह रही हैं पुणे से, उन्होंने भी कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस। निकिता जी, सर आज का गर्भ संवाद लीजिए प्लीज। निकिता जी, डेफिनेटली समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अभी तक हमने गर्भ संवाद नहीं लिया है, पर अगर समय बचेगा तो डेफिनेटली हम आज भी गर्भ संवाद करवाएंगे। बट एप्लीकेशन के अंदर गर्भ संवाद ढेरों दिए हुए हैं, इवन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां से उन्हें रोज कर सकते हैं। कोकोनट इज गुड इन प्रेगनेंसी। याति जी, डाइट को रिलेटेड अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के अकॉर्डिंगली कोकोनट सही है या नहीं वो आपको बता सकते हैं। पर कोकोनट वाटर प्रेगनेंसी के दरमियान पीने से एज सच मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, वायु का प्रमाण आपके शरीर में ज्यादा है, तो पॉसिबल है कि कोकोनट वाटर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज कर सकता है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर वायु प्रकृति है तो आप कोकोनट ऑयल को, कोकोनट वाटर को अवॉइड करिए। ठीक उसी तरह पपीते के लिए ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि पपीता नहीं यूज करना चाहिए, पपीते से मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। ये सब पर लागू नहीं पड़ता। पपीते की प्रकृति गर्म है तो वो गर्मी पैदा करता है शरीर में। अब आप एक पूरी तपेली भरकर पपीता खा लोगे तो वो गर्मी पैदा करेगा, पर अगर आपने सिर्फ 2-4 पीस लिए हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा, राइट। अगेन आपकी प्रकृति गर्मी वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपको अपने डॉक्टर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसे फॉलो करना है। होप कि आपके मन में अच्छे से क्लियर हो गया होगा याति जी। बहुत से बड़े लोग बोलते हैं क्लियर एंड फीचर्स में इफेक्टिव होता है। देखिए याति जी, किसी पर्टिकुलर चीज से ये इम्पैक्ट आती है, अगेन वही बात हो गई कि जामुन खाने से बच्चा काला हो जाता है या सफेद चीजें खाने से बच्चा गोरा हो जाता है, राइट। साइंटिफिकली ये कोई बात प्रूवन नहीं है। कोई व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बोलता है तो उसके एक्सपीरियंस की कितनी वैलिडिटी है वो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी बातों पर फोकस रखने से ज्यादा बेटर है कि हम पॉजिटिव विचार से उस चीज का इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली एक पावरफुल इम्पैक्ट हम बच्चे पर ला पाएंगे।
सर मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, अभी यूएसजी करवाया, उसमें भी सब ठीक है, फिर मेरा बेबी कम मूवमेंट क्यों करता है? मनीषा जी, मूवमेंट को लेकर कभी भी कंफ्यूज कोई भी मत होइएगा। मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए या कम, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो आपका बेबी जो मूवमेंट कर रहा है, उससे ज्यादा मूवमेंट कहना या कम मूवमेंट कहना, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सो बेबी अपने हाल में मस्त है, उसे जब इच्छा होती है तब हिल डुल लेता है, जब उसकी इच्छा नहीं होती है तब वो आराम कर रहा है, तो एंजॉय, राइट? हमें इस बारे में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट, यूएसजी रिपोर्ट आपको कह रहे हैं कि बेबी कंफर्टेबल है, ठीक है, तो फिर चिंता मत करिए। चिंता हमें चिता समान टेंशन देती है, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इवन हम तो हमारे कपल्स को ये सजेशन देते हैं कि अगर कोई चिंताजनक सिचुएशन डॉक्टर ने कही भी है ना, तो आप उसे अपने पॉजिटिव विचारों से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कपल था, उनका 8वें महीने के बाद हमारे पास मैसेज आया कि थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है, शायद डिलीवरी जल्दी हो सकती है। तो हमारे डॉक्टर ने हमें कहा है कि बेबी उल्टा है, उसे प्रेगनेंसी के लिए जिस पोजीशन में आना चाहिए उस पोजीशन में नहीं है। तो मेडिकल साइंस के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि जिससे बच्चे की साइज को, बच्चे के शेप को नॉर्मल किया जाए, वो जिस कंडीशन में उसे चेंज किया जाए। तो प्रार्थना करिए भगवान को, नहीं तो जल्दी से सी सेक्शन करना पड़ेगा। उनका फोन आया हेल्पलाइन नंबर पर, हमारे काउंसलर ने उन्हें गाइड किया। उन्होंने कहा कि आप कोई चिंता मत करिए, बेबी को ये बोलना शुरू कर दीजिए कि बेटा आप, अब डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, तो आप प्रॉपर पोजीशन में आ जाइए। उसको पता है कौन सी प्रॉपर पोजीशन है। उन्होंने, माता पिता दोनों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। 5 दिन के बाद उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। 5वें दिन जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर अपनी चेयर पर से खड़े हो गए और बोला कि क्या किया तुमने, ये पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन 5 डे। तुमने ऐसा क्या किया? डॉक्टर थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए उन पर, क्या आपने अपना ध्यान ही नहीं रखा? इतना बड़ा मैसिव चेंज आसानी से नहीं आ सकता। वो लोग बिल्कुल कूल काम होकर बोले डॉक्टर को कि आप चिंता मत करिए, हमने कोई गड़बड़ी नहीं कही है, सब कुछ सेफ है, हमने सिर्फ बच्चे को ये पॉजिटिव सजेशंस दिए थे। हम जो गर्भ संस्कार का कोर्स कर रहे हैं, वहां के हमारे काउंसलर ने हमें ये सजेस्ट किया था। और डॉक्टर भी ताज्जुब के साथ इतने खुश हो गए, और उसके बाद उन डॉक्टर ने उनके जितने भी पेशेंट हैं सबको ये कोर्स सब्सक्राइब करवाना शुरू कर दिया। तो ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स हजारों की तादाद में माता पिता को मिल रहे हैं। एक कपल तो ऐसे थे कि जिनको 6ठे-7वें महीने में ही कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था कि अब आप डिलीवरी के लिए रेडी रहो। माता के मन में क्लियर था कि नहीं, मुझे तो डिलीवरी 9 महीने तक खींचनी ही है, मुझे बच्चे का पूरा ग्रोथ करवाना है। उन्हें भी सेम टाइप का सजेशन दिया गया कि आप बच्चे को ये बोलो कि डिलीवरी जल्दी हो रही है, लेट हो रही है, ये फालतू डिस्कशन नहीं करना है। हमें उसे सिर्फ यही कहना है कि बेटा आपको जब सही समय लगे तब आपको डिलीवरी के द्वारा बाहर आना है, तब तक आप आराम से एंजॉय करो। हम भी आपके संग ये जो 9 महीने की यात्रा है उसे एंजॉय कर रहे हैं। हम रोज कहानियां सुनने वाले हैं, एक्टिविटीज करने वाले हैं, आपके डेवलपमेंट के रिलेटेड सब कुछ बेस्ट चीजें करने वाले हैं। आपको भी मजा आ रहा है ना? बेबी ने तुरंत उन्हें किक कर मैसेज दिया कि यस आई एम हैप्पी, मुझे मजा आ रहा है। और ये जो एक्टिविटी शुरू हुई, 6ठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9 मंथ कंप्लीट कर जो डिलीवरी 2.5 महीने पहले हो जाने वाली थी, वो 9 मंथ कंप्लीट कर नॉर्मल डिलीवरी हुई। ऐसे अद्भुत परिणाम गर्भ संस्कार के द्वारा हजारों माता पिताओं को मिल रहे हैं। तो आप किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करिए। गर्भ में पानी कम होता है, वृषाली जी, इट्स अ प्योरली मेडिकल क्वेश्चन, सो बेटर है कि आप इस बात को अपने डॉक्टर से सजेस्ट करिए। एक पर्टिकुलर लेवल से कम जब पानी होता है तब डिलीवरी को लेकर डॉक्टर डिसीजंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर अगर नॉर्मल मात्रा में कम है तो आप पानी का इंटेक बढ़ाकर, जूस वगैरह का इंटेक बढ़ाकर उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगेन इट्स अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, सो डॉक्टर के पास इसके लिए आप ज्यादा अच्छे से आंसर ले पाएंगे। वेट इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी। याति जी, आप ये किस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं? थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगी तो मैं आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगा। This is my first pregnancy and I am 81 days pregnant, so is continuous cramps in lower abdominal normal. Yes, अंगदा जी, ये सारे बहुत नॉर्मल फीचर्स हैं जो पहले
ट्राइमेस्टर के दौरान ज्यादातर माताओं को फेस होते हैं, राइट? तो इन सब चीजों के लिए नॉर्मली कुछ ऑयल्स वगैरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। बट अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर का कांटेक्ट करिए, आपकी स्पेसिफिक चीज को वो नोटिस कर आपको अकॉर्डिंगली आंसर दे पाएंगे। कुछ फूड रिलेटेड हैबिट्स में भी इम्प्रोवाइजेशन कर हम इन चीजों पे काफी सारा इम्प्रोवाइजेशन पा सकते हैं। Same here, sir. I'm in 49 days pregnant and having a lower abdominal cramps. They are problem and how to deal with this. सुमन जी, सेम आंसर आपके लिए भी वही लागू पड़ेगा। यादी जी, मदर का वेट ज्यादा होना या कम होना, ये कंसीव करने को लेकर या उससे कंटिन्यू करने को लेकर बहुत रेयर केसेस में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। ये कोई इतना बड़ा मेजर चैलेंज नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा वेट कम है या बहुत एक्सेसिव वेट है तो हम उस समय थोड़े से प्रिकॉशंस रखते हैं। पर अभी आज के मॉडर्न समय में हम 70-80 किलो को भी ज्यादा वेट गिनते हैं काफी समय, राइट? तो आपके हिसाब से वेट ज्यादा है या डॉक्टर ने वेट ज्यादा कहा है? पहले तो इससे हम कंफर्म करेंगे, राइट? क्योंकि हम फिगर को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं कि हमें तो हर वेट ज्यादा ही लगता है। तो हमें पहले डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए इस केस में कि मेरी हाइट और मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से सच में मेरा वेट ज्यादा है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इतना ज्यादा है तो चिंता भूल जाइए। पर अगर डॉक्टर भी कहते हैं कि वेट ज्यादा है तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा अपने बॉडी को इस तरह से मेंटेन करिए कि आपको ज्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए और जो जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उन्हें फोकस करने की कोशिश करिए। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन बेस्ड एक्टिविटीज करना शुरू करेंगे ना, ये सारे फियर आपके मन में से अपने आप भाग जाएंगे। सो चिंता मत करिए, चिंताएं करने से कभी सॉल्यूशन नहीं आने वाला। प्रॉपर तरीके से हम पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे ना तो अपने आप इस चीजों में हम काफी लेवल पर कंट्रोल देख पाएंगे। डज मॉम वेट मैटर्स इन प्रेगनेंसी? नो, नॉट दैट मच। अगर बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा हैवी है तो कुछ माइनर पॉइंट्स पर इंपैक्ट आती है और वो चिंताजनक बिल्कुल नहीं है, उन पर बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है। तो वेट को लेकर कोई भी मदर बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे एक मदर थे, 37 kg वेट था, 37 kg, बिल्कुल सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा 3 किलो 200 ग्राम के बच्चे को जन्म दिया। कोई कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं की थी, सिर्फ गर्भ संस्कार को प्रॉपर्ली फॉलो किया था और डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन्हें फॉलो किया था। वो भी टेंशन में ही आए थे कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे किसी ने डरा दिया है कि इतने कम वेट में तो यही करना पड़ता है। हमने उन्हें एक ही बात कही कि सारी बातें भूल जाओ, गर्भ संस्कार को फॉलो करो और डॉक्टर जो कहते हैं उन्हीं की बात को सुनो, बाकी सब भूल जाओ। बिल्कुल आराम से उनकी डिलीवरी हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा उन्होंने 3 किलो 200 ग्राम के बेबी को जन्म दिया था। सो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है, बिल्कुल चिंता मत करिए। You have recommended so many activities I used to do but unable to do them on consistent basis because of 100 of variety. How important is consistency of same activity that lead to better development of such activities in child? राधिका जी, बहुत important बात आपने पूछी है। देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, स्वीट, छाछ, बहुत सारी वेराइटीज होती है, राइट? अब इसमें से हमें सारी पसंद होती है ऐसा नहीं है, बट स्टिल एक संपूर्ण आहार के तौर पर हमें सारी चीजें लेनी होती है। ठीक उसी तरह इन 12 एक्टिविटीज को डिजाइन करते हुए हमने बेबी के डेवलपमेंट का संपूर्ण आहार डिजाइन किया है। अल्टीमेटली ये चारों एक्टिविटी IQ, EQ, PQ, SQ 4 क्वोशंट पर डिपेंडेंट है। तो इन सारी एक्टिविटीज का महत्व है, किसी भी एक्टिविटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट आपका जो क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, वो क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि हम किसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट के बिगर करते हैं। जब आप एप्लीकेशन का उपयोग कर करना शुरू करोगे ना, और 3-4 दिन के बाद आप मुझे फिर से पर्सनली कॉल करिएगा, आपका ये सवाल बचेगा ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन इतना हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। एक तो याद रखने का टेंशन है कि कौन याद करवाएगा, दूसरा टेंशन है कि टाइम पर मटेरियल कौन देगा, क्योंकि मटेरियल ढूंढना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, और तीसरा मुझे जब मन करे तब करने के लिए व्यवस्था चाहिए। ये सारी व्यवस्था एप्लीकेशन में हो जाती है। सो ये टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि
आपको फ्रीक्वेंटली करना इसलिए जरूरी है, जो मैंने डाइट के समय आज के सेशन की शुरुआत में ही कहा कि हम दिन में अगर एक बार खाना खाएंगे तो नहीं चलेगा, हमें संपूर्ण डाइट चाहिए। दिन में 3-4 बार हमें थोड़े थोड़े अंतर में खाना खाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली इन एक्टिविटीज के द्वारा हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप प्रेगनेंसी के दौरान पॉजिटिव रहोगे, उतनी पावरफुल इंपैक्ट बच्चे पर आएगी। अब अगर हम एक्टिविटीज नहीं कर रहे और दूसरे किसी काम में भी व्यस्त नहीं है, तो क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर, नेगेटिव वाइब्स आएगी, बच्चे को डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाएगी। तो उससे बचने के लिए एक्टिविटीज है, और जितनी वैरायटीज आप ट्राई करोगे उतना आपका मन भी लगा रहेगा, क्योंकि जब भी इंसान कुछ नया सीखता है, कुछ नया ट्राई करता है, तो उसे मजा आता है। I would like to know difference between freely available material on our app and paid version of app that I just subscribed. दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फ्री सेगमेंट के अंदर पहले तो हमने गर्भ संस्कार की सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, और हर एक एक्टिविटी का ट्रायल वर्जन दिया हुआ है, सैंपल्स दिए हुए हैं। अब वहां पर सारी एक्टिविटीज रखने से क्या नुकसान होगा कि आपको जनरल डेटा मिल रहा है, स्पेसिफिक चीजें नहीं मिल रही है। सब्सक्राइब किए हुए कोर्स में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपके लिए जो जरूरी 12 एक्टिविटीज हैं, वही आपको मटेरियल के साथ प्रोवाइड की जाती है, आपको और कुछ नहीं दिखाया जाता। जब रेस में घोड़ा दौड़ रहा होता है ना, तो उसकी दोनों साइड अड़चन रखी हुई होती है ताकि वो इधर उधर ना देखे, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। बस वही काम हम यहाँ पर करते हैं कि आपको सिर्फ आपकी 12 एक्टिविटीज दिख रही है, आपको और कुछ इधर उधर नहीं देखना है। पूरे दिन के अंदर समय की अनुकूलता के हिसाब से इन 12 को कंप्लीट कर दीजिए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो जनरल पोर्शन जो है वो सबको कॉमन दिख रहा है। सब्सक्राइब किया हुआ पोर्शन वृषाली जी को अलग दिखेगा, निधि जी को अलग दिखेगा, अंजना जी को अलग दिखेगा, वैभवी जी को अलग दिखेगा, चाहे इन चारों का प्रेगनेंसी डे एक क्यों ना हो। प्रेगनेंसी डे एक होने के बावजूद भी चारों का कोर्स अलग ही डिजाइन होगा, क्योंकि क्वालिटी तो अलग हो सकती है ना। तो इतना स्पेसिफिकली इसे डिजाइन किया गया है। दिस इज नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, दिस इज फॉर रेगुलर पर्सन, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। या एक्टिविटीज हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में मिलकर करनी है। सो ऑब्वियसली बिल्कुल परफेक्ट बात कही हर्षा जी आपने। इज बीइंग फिजिकली एक्टिव नेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस सुमन जी, अगर आपको बेड रेस्ट नहीं कहा गया है तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिव रहने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो मूड स्विंग होना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो परेशानी आती है, वो सारी काफी मात्रा में कम हो जाती है। आप सभी को याद होगा कि पहले के समय में डिलीवरी का समय नजदीक आते समय भी हमारे मदर या हमारे ग्रैंड मदर्स घर की साफ सफाई, कचरा पोता करना, ये सब कुछ खुद करते थे, और इसी वजह से उनकी डिलीवरीज नॉर्मल होने के रेशियो ज्यादा थे, राइट? तो अगेन फिजिकल एक्टिविटीज आर नॉट कंपल्सरी। अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है तो पहली प्रायोरिटी बेड रेस्ट होगा, पर अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो यू कैन गो फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। और अगेन योगा वगैरह की एक्टिविटीज आपको, अगर आप रूटीन लाइफ में नहीं करते हो तो प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से शुरू मत कर दीजिए, धीरे धीरे करिएगा। अगर आप पहले भी रूटीन करते थे और प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यूस करते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका शरीर उस हिसाब से कसा हुआ है पहले से, राइट? व्हाट्स लाइट हाउस क्वालिटी ऑफ चाइल्ड मीन व्हाइल स्टार्टिंग पेड ऐप? लाइट हाउस एक्टिविटी नहीं, वो लीडरशिप एक्टिविटी है। इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा वहां पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है राधिका जी, सो उसे आप लीडरशिप क्वालिटी कंसिडर कर आगे चलिएगा। स्वाति जी, कभी कभी डाइटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं होता घर पे, और अभी तो कोविड के कारण बहुत चीजें नहीं मिलती, तो ऐसे में डेली डाइट कैसे फॉलो करें? स्वाति जी बिल्कुल चिंता मत करिए डाइट को लेकर। मैंने आज ही सेशन में आपको ये बताया कि आप क्या खा रहे हो, उससे ज्यादा किस विचार से खा रहे हो वो इम्पैक्ट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक लिमिटेशन है कोविड की वजह से, हम सारी चीजें अभी नहीं खरीद कर ला पा रहे। तो जो खा रहे हो आप, जो अभी अवेलेबल है घर में, उस चीज को पॉजिटिव विचार से खाइए। जो चीज लाना चाह रहे थे ना, वही खा रहे हो ऐसे विचार से खाइए। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर अभी दाल का हलवा खा रहे हो, मूंग की दाल का हलवा, और बादाम का खाना चाह रहे थे, तो मूंग की दाल का हलवा खाते हुए ये सोचिए कि ये बादाम का हलवा है, और मैं बादाम का हलवा खा रही हूँ बेबी आज, और आज उससे तुझे बादाम के गुण मिलने वाले हैं। ट्रस्ट मी, बादाम के हलवे की इंपैक्ट आएगी।
ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और इसे दुनिया के सारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ है अलग अलग एक्सपीरियंस के द्वारा। तो कोविड हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उल्टा का कोविड तो है ना प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए घर पर बैठे हो, हस्बैंड भी घर पर है, साथ में मिलकर बच्चे के संग मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो ना। अगर कोविड नहीं होता, सब अपने अपने काम में बिजी होते, तो अभी आप ये वर्कशॉप भी नहीं अटेंड करते। नहीं, अभी तो मुझे काम था, राइट? अभी कोविड ने घर पर बिठा रखा है ना, तो कोविड को थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, ये थैंक यू ऐसा मत बोलना कि रुक जाए, अभी उसको भगाना है अपने को इंडिया में से, पूरी दुनिया में से। बट कोविड की वजह से हमें एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है, ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे के साथ बिताइए, राइट? वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी आप घर पर साथ में स्क्रीन पर काम चल रहा है और इधर आपने अपना ऑडियो चालू कर लिया, म्यूजिक सुनना शुरू कर लिया, वीडियो सुनना शुरू कर दिया, तो हो सकता है ऑफिस में नहीं कर पाओगे, पर घर पर वर्क फ्रॉम होम है तो एक्टिविटीज भी हो पा रही है, राइट? IUI, IVF, कोई भी प्रकार के ट्रीटमेंट अगर आपने करवा रखे हैं, तो एप्लीकेशन में योग की एक्टिविटी को छोड़कर बाकी की 11 एक्टिविटीज आप बेड रेस्ट में भी कर सकते हो, तो वो भी चिंता का विषय नहीं है। I am IVF patient on bed rest since day first. Minor sitting I do for 1-2 hours maximum each day, including meal time. How do I update your app for my needs? राधिका जी, और कुछ भी एक्स्ट्रा अपडेट करने की जरूरत नहीं है आपके केस में। सिंपली आपको बच्चे की क्वालिटी और प्रेगनेंसी का डे ही सिलेक्ट करना है। योगा को छोड़कर बाकी की 11 एक्टिविटीज आप बड़े आराम से करिए, कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो क्या करें? शिल्पा जी, कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, वो आपको गाइड करेंगे कि ये बढ़ता हुआ वेट एक्चुअल में जेन्युइन बढ़ा है या नहीं, क्योंकि नॉर्मली डिलीवरी का समय नजदीक आते आते माता का एवरेज 5 से 8 किलो के आसपास का वेट बढ़ता ही बढ़ता है, राइट? बेबी का वेट होता है, पानी का प्रमाण जो बढ़ता है उसका वेट होता है, तो बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है। तो एक्सेसिव क्या है वो आप डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, राइट? सो होप के ऑलमोस्ट जितने भी सवाल यहाँ पर पूछे गए थे सभी का हमने आंसर करने की कोशिश की। अभी भी कोई थॉट अगर आपके मन में रह जाता है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, हमारी टीम तुरंत आपको गाइड करेगी। MGS कोड का आप इस्तेमाल कर कोर्स तुरंत शुरू कर सकते हैं। सर, वी हैव मिस्ड द सेशन टुडे, कैन यू गिव द रिकॉर्डिंग वीडियोस? यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक गर्भ संस्कार गुरु, इस पर जाकर आप पिछले 3 दिन के सेशंस अगले 7 दिन तक देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सेशन मिस हुआ है तो आप YouTube पर जाकर हमारी चैनल पर से इन सेशंस को देख सकते हैं, इवन अपने किसी फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। यस, यति जी ने लिंक यहाँ पर शेयर कर दी है, इसी लिंक पर आप सेशन देख सकते हैं। मेरा 6 मंथ चल रहा है, मुझे रात को सोते समय नींद नहीं आती है क्योंकि बेबी बहुत मूवमेंट करता है, तो कैसे सोएं? ये नहीं समझ में आता। आशा जी, बहुत नॉर्मल इश्यू है क्योंकि 6-7वें महीने के बाद कभी कभी बेबी मूवमेंट्स ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, सोने का समय जब भी होता है रात को, तब आप एक एप्लीकेशन में से एक प्रेयर शुरू कर दीजिए। प्रेयर जब भी शुरू होती है, प्रेयर चल रही होती है, तब आप अपने दोनों हाथ पेट पर रखते हुए बेबी से बातें करिए और उससे कहिए कि बेटा सोने का टाइम हो गया है, अब हम सभी सोने वाले हैं और बड़े आराम से 6-7 घंटे की नींद लेते हुए हम सुबह वापस एकदम फ्रेश होकर उठेंगे और ढेर सारी एक्टिविटीज करेंगे। मैं एकदम एक्साइटेड हूं कल की स्टोरी तुझे सुनाने के लिए। कल तू डियर मॉम सेगमेंट में मुझे क्या बोलने वाला है वो भी मुझे सुनना है, तो चल फटाफट से सो जाते हैं। ऐसे कर आप उसे सुनाने की कोशिश करेंगे, 2-3 दिन में ही आपका ये प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, 3 दिन के बाद आप सामने से मुझे फोन कर बताएंगे कि सर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। बेबी सब कुछ सुनने को तैयार है, आप बोलो तो सही, वो आपकी सारी बातें मानता है, बस हम बोलते नहीं है इसलिए गड़बड़ हो जाती है, राइट? तो चलिए सेशन के अंत में हम सभी साथ में मिलकर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की प्रेगनेंसी खूब आनंददायक रहे, आप एक श्रेष्ठ गुणों वाले संतान को जन्म दे सके। दुनिया के तमाम माता पिता जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, उन सभी तक गर्भ संस्कार का ये महान ज्ञान पहुंचे और हर एक व्यक्ति गर्भ संस्कार का पालन कर एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सुजल जी, हमने जैसे कि आगे बताया कि हमने
रिलीजियन स्पेसिफिक मटेरियल वहां पर नहीं डाला है। अभी हमने एप्लीकेशन में इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज रखी है, पर जहां पर रिलीजियन स्पेसिफिक एक्टिविटी आती है, तो एग्जांपल के तौर पर मैंने मंत्र जाप में आपको वहां पर रामधुन करने को कहा है, तो आप वहां पर अपनी जैन की जो भी प्रार्थना या धुन है वो आप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपको वहां पर सजेस्ट करेगा कि दिस इज द टाइम फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वहां पर आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर दीजिए। मैंने वहां पर आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा है, तो आप अपना जैन संप्रदाय का कोई ग्रंथ ले लीजिए और उतना समय उसे पढ़ लीजिए। तो हम रिलीजियन स्पेसिफिक एक्टिविटी भी अपने आप वहां पर कर लेंगे, और बाकी की जो 11 एक्टिविटीज है वो तो रिलीजियन स्पेसिफिक है ही नहीं, वो तो सभी के लिए कॉमन है, तो उन्हें हम कॉमनली फेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, राइट। हमने मोबाइल नंबर पे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उसका आंसर कब मिलेगा? निकिता जी, आपका क्वेश्चन शायद हमें मिला नहीं है, नहीं तो उसे डेफिनेटली हमने कवर कर लिया होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हेल्पलाइन नंबर पर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनमें से किसी भी नंबर पर अपना क्वेश्चन वापस भेज दीजिए या कॉल कर लीजिएगा। हमारे काउंसलर्स आपको तुरंत हेल्प कर उस क्वेश्चन में गाइड करेंगे। एक और बात मैं सेशन के अंत में आप सभी को याद करवा दूं, कल हमने स्टेम सेल बैंकिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में समझा था। आप में से ज्यादातर माता पिता ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था फ्री प्रेजेंटेशन के लिए। अगर किसी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है तो आज जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में नॉलेज होना प्रेगनेंसी के दौरान बेहद जरूरी है। जितना गर्भ संस्कार का नॉलेज जरूरी था अभी, उतना ही स्टेम सेल बैंकिंग जरूरी है उसका आइडिया होना, बिकॉज आने वाले समय में जो भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी की पॉसिबिलिटी भगवान ना करे हमारी लाइफ में आए, पर अगर आती है तो उस समय स्टेम सेल बैंकिंग एक बहुत बड़े वरदान के स्वरूप हमारी लाइफ का हिस्सा बन सकता है। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्टेम सेल इंडिया का नंबर नहीं, स्टेम साइट इंडिया का नंबर नहीं है, तो मैं एक वीडियो आप सभी को यहाँ पर सेशन के अंत में बताने वाला हूँ। उस वीडियो में आपको स्टेम साइट इंडिया का नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल कर अपना प्रेजेंटेशन डेफिनेटली बुक करवा लीजिएगा। I missed stem cell banking session. Can you please share link to register? Yes, अंगदा जी, हम एप्लीकेशन में भी नंबर शेयर करने वाले हैं आज, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, और मैं आपको सेशन के अंत में जो वीडियो बता रहा हूँ वहां पर भी आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। होप कि आप सभी को इन 3 दिनों की यात्रा में बड़ा मजा आया होगा, बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक्स टू एवरीवन कि आपने अपनी प्रेगनेंसी की इस यात्रा में हमें हिस्सेदार बनाया, और हमें बहुत खुशी होगी कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको कभी भी कोई सवाल हो तो आप तुरंत हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेशंस आपको कैसे लगे, आप अपने फीडबैक हमें जरूर से बताइएगा। हमारा फेसबुक पेज है मैजेस्टिक गर्भ संस्कार, वहां पर रिव्यू सेगमेंट में जाकर आप जरूर अपने कमेंट्स लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये सेशंस कैसे लगे। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप जरूर से हमें बताइएगा, ताकि हम उन्हें भी इन्वॉल्व कर सकें। और एवरी वीक हमारे ऐसे अलग अलग सेशंस चलते रहते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, तो आप आने वाले सेशंस का भी हिस्सा बन सकें। हैप्पी गर्भ संस्कार टू एवरीवन। आज हमने आप सभी से जो स्वीट मंगवाई थी बनवाकर, वो इस सेशन के अंत में हम प्रार्थना के साथ उसे भगवान को चढ़ाकर आप सभी का मुंह मीठा करवाना चाहते थे। सो बस वही समय अभी आ गया है। ढेर सारी प्रार्थनाएं, आप जिन भी इष्ट देव को मानते हैं उन्हें प्रार्थना करते हुए हम सभी साथ में मिलकर संकल्प लेते हैं कि आज से लेकर डिलीवरी के दिन तक हम पूरे दिल से गर्भ संस्कार का पालन करेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज हमें सिखाई गई है उन सारी एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से पालन करने की कोशिश करेंगे। जितना भी कुछ बेहतर हो सकता है हम हमारे बेबी के लिए करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कोई चिंता, टेंशन, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसे पोटले में बांधकर कोरोना के साथ भेज देंगे बाहर, और मैक्सिमम पॉजिटिव विचार, खुशियों भरा माहौल और एक सात्विक संस्कारी एनवायरनमेंट पूरे परिवार में क्रिएट हो, ऐसी कोशिश करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ हम स्वीट्स को, प्रसाद जो भी हमने बनाया उसे भगवान को अर्पण करते हुए अपने परिवार के तमाम सदस्यों का मुंह मीठा करेंगे। आज सारी मदर्स ऑलमोस्ट अच्छे से सज धज कर संवर कर आई हैं,
तो वैसे तो प्रेगनेंसी के समय हम वैसे ही ब्यूटीफुल लगते हैं, हमारी सुंदरता और बढ़ जाती है, आज और ज्यादा बढ़ गई है, तो डेफिनेटली आपका बेबी भी बहुत खुश हो रहा होगा। तो इसी प्रार्थना के साथ चलिए सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। स्टेमसाइट इंडिया का एक ब्यूटीफुल वीडियो देखते हुए हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। You've probably heard about cord blood stem cells, but what do they actually do? And where can you find them? Cord blood is the leftover blood in a child's umbilical cord at birth. It has all sorts of amazing benefits and untapped potential. And scientists are only just beginning to discover all of its special healing powers. Most of its powers come from stem cells. Think of stem cells as super cells that can repair or replace damaged cells in your body. It's like having a backup of the healthiest version of you. Most people are unaware of the benefits of cord blood. And as a result, their baby's cord blood is discarded as medical waste. That's crazy. Cord blood stem cells are multipotent cells that have the special ability to develop into any type of blood cell found in the body. That's why scientists thought, why not use the stem cells to treat debilitating diseases? A few years of research and ta-da! It worked. Cord blood stem cells have been used for over 25 years in treatment of diseases like leukemia, sickle cell anemia, plus about 80 other diseases and conditions. And researchers have had promising results in using cord blood stem cells to treat Alzheimer's, cerebral palsy, heart diseases, autism, and even spinal cord injury. Wow, that's amazing! And just to think we've only just begun. Imagine what we could do with cord blood stem cells in the next 30 years. Saving your baby's cord blood now means your family will benefit from the amazing powers cord blood has to offer. So, protect your family's long-term health by making the decision to save your baby's cord blood today. Yes, ये है स्टेमसाइट का नंबर। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और इस नंबर पर आप कॉल कर कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाते समय आप खास ये कंफर्मेशन दीजिएगा कि आप वर्कशॉप पार्टिसिपेंट हैं, तो जो 750 रुपीज का मी एंड मॉम का गिफ्ट वाउचर है वो भी स्टेमसाइट की टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी। कल का जो कंपटीशन था उनके जो विनर्स हैं उनके नाम अनाउंस करने मिस रह गए। चलिए, याद अच्छा आपने करवाया, हम उन्हें भी अनाउंस कर देते हैं। लक्ष्मी ओझा जी हैं पुणे से, वो कल के एक विनर हैं। दूसरे हैं साची जी मुंबई से। तीसरे विनर हैं यति गर्ग जी हैं गाजियाबाद से। चौथे विनर है तृप्ति पटेल वडोदरा से। और पांचवे विनर है पूर्णिमा मोरे जी पुणे से। तो आप पांचों विनर्स को ढेर सारी बधाइयां। और पिछले 2 दिनों के जो भी विनर्स हैं, आप सभी को आपके ईमेल आईडी पर आज शाम के 7 बजे से पहले आपके एडिशनल गिफ्ट वाउचर्स भी मिल जाएंगे। जो एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का पूरा जो किट आता है उसका गिफ्ट वाउचर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर एवरीवन।